Namaskar, welcome to an aspiration. Yes, today is a very special episode, and I think through skin you can see the faces, and I think in the world of Kathak they don't need any introduction, but still, as a host, and I feel so happy, like they all have come in the same platform to discuss about their journey and whatever, like we'll get to know more about like many things from them. And here previously I used to introduce for the groups, like with the names which comes alphabetically, but here as they belongs from the family, and like not only me, like I think everyone, we believe in the family it is very we do respect according to the age. And here, like that, we have with us Saurabh Gaurav Mishra. Saurabh and Gaurav, थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार जी। namaskar. And then we have Tribhuvan Maharaj. Tribhuvan. नमस्कार नमस्कार। And we have Durgesh Gangani. And we have Sanjit Gangani. नमस्कार दादा। And we have Rudra Shankar Mishra. नमस्कार भैया, नमस्कार। By the name, I think we got to know who they are. Actually, their faces are quite known to everyone, but still, with the name, I think now we know who are they. मतलब वही मुझे ये लगता है, they belongs from such a great family, like as a Kathak dancer, as a practitioner, like from the very childhood, I myself get to know from my guru, like we respect and we worship their blood. Because of them, because of their ancestors, today what we are doing. It may be like from Jaipur Gharana, Lucknow Gharana, Benares Gharana, it doesn't matter. All the great gurus, I personally, if you consider separately as a gharana, yes, I belongs from Lucknow gharana, Kalka Binadin gharanas, and we know these are the Lucknow, Jaipur, and Benares are the major gharana that is there. And now we will get to know what they think about their gharanas and or the Kathak, because most of the time we, the dancers, the practitioners, we fight against each other, regarding our gharana or something like that. But as I came to close to everyone, I got to know they have so much respect to each other and they love each other. Their personal relationship is so strong. Their bonding is so strong. It's just like one family. It's just like one family. And I am really thankful to each and everyone that you all came to this forum to talk about your journey, your ideas अरे and everything. थैंक यू दादा। So मतलब मैं उसी से शुरू करना चाहेंगे कि पहली जो बात है, मैं ये सबसे जानना चाहेंगे कि आप घराने से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली, उसके बारे में आपका क्या विचार है, आपका क्या सोच है। तो मैं सौरभ गौरव जैसे सबसे उम्र में बड़े हैं तो उनसे ही मैं शुरू करता हूँ। अरे नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। नहीं, सबसे बड़ा नहीं हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ। त्रिभुवन भैया बड़े हैं, दुर्गेश भाई बड़े हैं हमारे। हाँ। ओ क्या बात, सॉरी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे लगा था कि मैं माफी चाह लेता हूँ, क्योंकि नो प्रॉब्लम। मतलब मुझे जितना पता था कि शायद ये लोग बड़े थे, पर नहीं, ठीक है, सॉरी। एनीवे, मतलब वही तो कला में या जीवन में ऐसे बड़ा छोटा में कोई अंतर नहीं होता है कि जो भी मतलब इंसान है, एंड ऑफ द डे, मतलब एक समय तक तो सब जो बच्चे हैं वो बच्चे होते हैं, पर जो बड़े हो जाते हैं तो पहले बच्चा अपने पिता के हाथ पकड़ के चलते हैं, पर एक समय आ जाता है कि जब दोनों एकदम कांध में मिला के चलते हैं, और फिर एक समय आ जाता है वही बच्चा पिता को हाथ पकड़ के चलाते हैं। तो ये तो जिंदगी है।
तो ये बिल्कुल क्या सही है। बात है, क्या बात है। ठीक है, तो मैं जी। शिवपाल भैया से मैं पूछूंगा कि आपके लिए ये आप क्या सोचते हैं? जी संदीप जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। सबसे पहले मैं बोलूं एंड बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन था हम सबका, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। मैं सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि हम में से कोई भी, चाहे मैं हूँ, चाहे दुर्गेश जी हैं, चाहे कोई भी, मैं हम लोग की कोई चॉइस नहीं होती कि हम इस घराने में पैदा हों। सबसे पहली बात, हमने हर किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह हम लोग ने भी आंखें खोली अपनी, और धीरे धीरे हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारा घर, हमारा हाउस होल्ड, हमारे घर की बातें और एक चलने का तरीका घर का बहुत अलग है। मेरे दूसरे जितने भी मेरे बचपन में यार मित्र रहे हैं, उन सब से बहुत अलग है। सबके घर में हमें सुनने में आता है कि भाई बड़े होके इंजीनियर बनना है, बड़े होके लॉयर बनना है, बड़े होके डॉक्टर बनना है, एंड जो भी जैसे भी उनका एक सपना होता है उनके पेरेंट्स का अपने बच्चों को लेके। मेरे पेरेंट्स का मेरे लिए सपना अलग था, और एक यूनिक, मैं यही मानता हूँ कि अगर मेरा जन्म इस घराने में हुआ है, जी, अगर इस घराने में मेरा जन्म हुआ है, तो शायद मेरे शरीर में या मेरी आत्मा में कोई ऐसी बात तो डाली गई होगी ऊपर से कि मैं उस चीज को बखूबी निभा सकूं। और जहां तक मेरे पूर्वजों की बात है, चाहे मैं कालका बिंदादी महाराज जी हैं जिनसे हमारा घराना जाना गया है, या जितने भी दिग्गज कलाकार हमारे घराने में हुए हैं, उनका सानिध्य पाना मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपने घर पे बैठे बैठे मुझे ये पता है कि ये इनसे मेरा खून का नाता है, इनसे मेरे खून का रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं जाके मैं आपसे कहूंगा कि धीरे धीरे बाकी जितनी भी चीजें, जैसे जैसे क्योंकि क्या होता है, बच्चा जब बढ़ता है, बड़ा होता है, तो उसके कई सारे इंटरेस्ट होते हैं, जागते हैं, खोते हैं। कभी कभी एकदम आपको लगता है कि आप कुछ और करना चाहते हो, आप कुछ और बनना चाहते हो, आपको कुछ और करना है। मैं आपको बताऊंगा, 6ठी क्लास तक मुझे पायलट बनने का बहुत शौक था। तो मुझे लगा कि भाई चलो एविएशन कर लेते हैं, ये वो, ठीक है। 6ठी क्लास तक तो पढ़े, उसके बाद जब थोड़ा आटे दाल का भाव पता चला पढ़ाई लिखाई में, तो ऐसा लगा कि भाई आई थिंक दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। थोड़ा सा उससे बैकआउट, अपने आप ही बैकआउट हो गया। तो मैं बस वही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो ये जर्नी रही है फ्रॉम फ्रॉम योर चाइल्डहुड टिल आपने क्या किया, वो एक समय आता है। मेरा समय वो कॉलेज का समय था, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया था। मेरे लिए वो कॉलेज का एक समय था जहां पर मेरी जिंदगी में एक एक मोड़ आया, एक टर्न लिया, अच्छा, एक मोड़ आया मेरी जिंदगी में, जहां पे धीरे धीरे बाकी सब चीजें या तो लुप्त हो गई, नहीं तो सिर्फ शौक बन के रह गई। तो उन बाकी मतलब फिर उसके बाद सिर्फ एक टारगेट रह गया, और वो टारगेट मेरे अंदर किसी ने नहीं डाला। मेरे माँ बाप ने कभी भी, बचपन से तालीम मिली मुझे तालीम के नाम पर आप बोले तो मुझे बचपन से मेरे पिताजी से, दादाजी से, बुआ से, चाचा से, सब आइडल रहे हैं मेरे। तो सबसे मुझे थोड़ी बहुत तालीम इधर उधर मिलती रही है। पर जहां तक अपनी सोच की बात है, क्योंकि आप जब तक खुद से नहीं करना चाहते हैं, आपको कोई करवा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो टर्न है कि मुझे ये करना है अपनी तरफ से, एक सेल्फ इनिशिएशन, वो मुझे कॉलेज के समय पर आया, जहां मुझे ये लगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस चीज को बखूबी निभाऊं और कथक की सेवा करूं, और जितना हो सके अपने आप को इसकी गहराइयों में लेके चलूं। क्या बात, और बस बिल्कुल मेरी क्या बस बात, ऐसी ही जर्नी रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस परिवार से ऐसे घरानेदार लोगों के बीच में मैं पैदा हुआ, मैं जन्मा, और मेरी ऐसी लाइफ रही है जैसी अभी तक 29 साल तक मेरी रही है। बिल्कुल। तो दुर्गेश भाई, First of all, Bhaiya, thank you so much for having me here with all these, beautiful people and amazing dancers. When we talk about Gharana, जब घराने की बात करते हैं, तो I feel really honored and I feel really lucky and privileged that I was born in such a family where I don't know how many ancestors and कितनी generation से ये काम होता आ रहा है और उन्होंने अपना नाम बनाया. So that was a privilege for me that I was born in this family. But what we have to understand is that we don't get a choice to pursue this. We have to do it.
our training start, my personally, I will speak about myself. My training started like तालीम जो शुरू हुई वो 4 साल की उम्र से सिखाना शुरू कर दिया था. जैसे ही अच्छे से भागने दौड़ने लगे, मसल्स थोड़े मजबूत हुए बच्चों के, तो वो सिखाना शुरू कर दिया. तो वो एक ऑप्शन नहीं रहता. फिर जब बड़े होते हैं, you know, when you see your friends doing different things and you try to do different things, but then it turns out that you only have aptitude for one thing because all your life, all you have done is that. And when you try to do other things, you fail miserably. बिल्कुल. Right. So, बिल्कुल. so that is there. Yes. So that is that time when it comes. एक teenager के life में एक time आता है, like especially a male dancer. उनकी life में एक अलग time आता है कि when they are trying to do something else and they have this existential crisis, and that time all they can do is this. And I was in a denial for a long time that no, I want to pursue something else. Yeah, मेरी तालीम चल रही थी, but I want to pursue something else also with it. I didn't want to do my bachelor's and master's in performing arts. I did not want to do that. I wanted to pursue something else. But one fine day, something terrible happened. I had an accident. I broke my knee, and the doctor was like, "You cannot, you cannot have a long future in dance, and you have to look for something else." And I got happy for a while. And trust me, for a week or two, I could not sleep at night. I could not sleep. I was insomniac. I could not sleep. मैं सुबह 7-8 बजे सोता था. And that's when I realized that this is something I love. This is something I was born to do it. If I'm born in this family, then there is a reason. Yes. Yes. So that's when I, shook myself. I'm like, yeah, abhi I got my knee operated and everything, and then I got back on track. This is 10 years back, and after that I have never looked back. So and Gharana is very important because for me, like, I don't have to look down on any other Gharana. If I love my Gharana, I really respect my Gharana, and my Gharana is my identity. But that doesn't mean that I look down on other Gharana. Well, that's a different topic. So this is it for now. Good. So now, whose turn? Shourabh Gaurav or Sanjeet? Shourabh Gaurav. Yes, Shourabh Gaurav. तो Yes. हमारा हम लोगों का जो हमारी जो कथक की जो तालीम शुरू हुई बचपन से ही, क्योंकि मेरी खुद की जो तालीम थी, गौरव भाई ने तो 5 साल की उम्र से डांस शुरू कर दिया था, लेकिन मेरी तालीम वो बहुत लेट में शुरू हुई क्योंकि मेरे दोनों पैर में बचपन में ही पैरालाइज मारा हुआ था. अभी मैं आप सबसे से शेयर करता हूँ क्योंकि मैं काम नहीं कर पाता था, एक जगह बैठा रहता था, कुछ नहीं कर पाता, कुछ वर्क नहीं थे मेरे. तो भगवान की बड़ी कृपा रही कि धीरे धीरे कुछ प्रोसेस पैर में स्टार्ट हुआ. होते होते तो डॉक्टर ने बोला कि इसको कुछ ऐसे स्पोर्ट में डालिए ताकि ये दौड़ता रहे, पैर का काम होता रहे. तो हमारे अंकल ने, पंडित रविशंकर मिश्रा जी, जो कि हमारे गुरु जी भी हैं, चाचा जी भी हैं और हमारे आदर्श भी हैं, तो उन्होंने बोला कि जब घर की चीजें हैं कथक डांस, तो आप उसको करो क्योंकि जिंदगी भर उसमें पैर का ही काम है. डांस में थोड़ी पैर भी चलती रहेंगी, एड़ियां भी चलती रहेंगी. तो उस टाइम मैं भी कथक में आ गया अपने भाई के साथ और बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि हम दोनों भाई एक दूसरे के लिए बने हैं. इनके लिए मैं बना था तभी तो मेरा पैर ठीक हुआ. वो ऊपर से बन के आता है कि अगर हमें डुएट करना है, भगवान ने मुझे डुएट के लिए भेजा है, तो कहीं ना कहीं से हम दोनों को ला दिया ट्रैक पे. और आज हम आप सभी के छोटे भाई के तरह से हैं और आपके सामने हैं. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा. और जैसे घराने की बात हुई है, घराना क्या, मैं तो घराने के विषय में कुछ बोलूंगा क्योंकि नहीं, मैं भी खुद शागिर्द हूँ और मैं उस लायक नहीं हूँ घराने के ऊपर मैं बात कर सकूं. खुद वो चीज सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, क्योंकि बनारस में बहुत चीज तो है नहीं, सब कुछ बाहर से ही आई है. कुछ यहाँ के लोग बहुत पहले बहुत तबला के बोल डांस करते थे, तबले की बंदिशें ज्यादा थी क्योंकि बनारस घराने में पंडित राम साहब जी का, जो कि महाराज जी के दादाजी के कजन, एक लोग लखनऊ घराने में आ गए और एक लोग बनारस घराने में आ गए. तो
यहाँ से बनारस घराने की जो तालीम स्टार्ट हुई डांस की, वो पहले लोग गोपी कृष्णा जी, सितारा देवी जी, ये लोग बहुत तबला के बोल नाचे। उसके बाद फिर महाराज जी के गुरु जी लोग के पास, बड़े लोग के पास गए, पिताजी लोग के पास गए, उन्होंने तालीम लिया, वो सीखा। कितने दिन लखनऊ रह के सितारा देवी जी, अलकनंदा देवी जी, तारा देवी जी, इन्होंने तालीम लिया महाराज जी से, महाराज जी के पिताजी से। तो वो चीज फिर डांस के बंदी से आने लगी बनारस में। वो जो हैंड, जैसे कि हम लोग खुला डांस कहते थे, वो हाथ पूरा खोल के, लेकिन वो नटवरी नृत्य था बनारस घराने में। नटवरी नृत्य, हाथ खोल के, जैसे तांडव अंग, पूरा हाथ खोल के डांस करना, हाथ कहीं भी चल जाए, धा कहीं भी लग जाए, उसका कोई वो नहीं था कि मतलब मिजाजिया डांस था। लेकिन जब चेंज हुआ, ये जब सितारा देवी जी लोग जब बड़े गुरुओं के पास गई, और हमारे खुद के हमारे आदर्श, जो कि हम हम लोग उनको अपना भगवान मानते हैं, उनको पूजते हैं, जो कि पूरी दुनिया उनको पूजती है, और हम उनके रिलेशन में हैं, वो हमारे सगे मौसा जी हैं, पंडित बिरजू महाराज जी। तो ये हम बहुत अपने आप को भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं कि दोनों तरफ से जो गाइडेंस हमको मिली है लखनऊ बनारस की, उसमें हम लोग अपनी तालीम चल रही है, पल रहे हैं, पोस रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, और कोशिश करें और अच्छा से अच्छा हो पाए। ये नहीं बोलेंगे कि आज बहुत अच्छा हो गया, बहुत तगड़ा कर दिया, लेकिन नहीं, बहुत कोशिश करें बहुत अच्छा हो पाए। ये तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा, ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा। जी संजीत, जी दादा, संजीत, मैं तो जी संजीत, नमस्कार दादा। और जैसे कि सभी भाई दिख रहे हैं, तो इन सभी को मेरा नमस्कार। भैया 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 भैया। तो दादा, मेरी जो ट्रेनिंग है, वो कह सकते हैं कि हमारा जो कथक जो आर्ट फॉर्म है, इसमें कहते हैं ना, जैसे कि देखा, सीखा और परखा। तो जब मैं दादा बहुत छोटी उम्र से ही, आज भी इवन मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरे पिता मेरे गुरु हैं, पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी। और सबसे ज्यादा दादा जो एक खुशी और एक जो आदमी को जो एज अ घरानेदार जो मुझे फील होता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज को लेकर, कि जब भी मैं सुबह जागता हूँ, अपनी सुबह की उनके साथ चाय से लेकर, और उनके साथ जब वो रियाज करते हैं, वो जो पहला धाम मारते हैं वो जमीन पे, वो जो पहला धाव, उसको देखता हूँ, जो मैं उस चीज को लेकर अपने आप को बहुत लक्की समझता हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस घर में मेरा जन्म हुआ है, कि मैं इतनी बड़ी एक विभूति को जो है रियाज करते वक्त उनके मैं साथ होता हूँ सुबह। तो दादा, बचपन से ही मुझे कभी किसी ने फोर्स नहीं किया घर में मेरे कि मुझे नाचना है। हमेशा से मेरे ऊपर ये था कि जो मुझे करना है वो मुझे करने दिया जाएगा, ये हमेशा से था। वाह वाह। पर पिताजी को देख के हमेशा ही दादा बचपन से ही बहुत इंस्पायर होता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कभी भी उनका मतलब छोटा होता था तो मैं स्कूल मिस कर सकता था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने अपना रियाज मिस किया है। तो मैंने वहां से बचपन से जो सीखना शुरू किया, वो देख कर सीखना शुरू किया। और फिर जब मैंने प्रैक्टिकली शुरू किया, वो काफी जैसे 16-17 साल की उम्र में मैंने वैसे प्रॉपर जो ट्रेनिंग उनसे कथक केंद्र में जो शुरू की, वो वहां से उस उम्र में की। और घर की और घराने की बात करें तो दादा, गुरुजी पिताजी हमेशा ये कहते हैं कि हम सब एक हैं, हम सभी जो हैं कथक के साधक हैं, कथक की पूजा कर रहे हैं। तो घराना तो मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। इवन आप देखें कि मैं या दुर्गेश भाई या त्रिभुवन भैया या जो भी सब गौरव भाई या रुद्र भाई, हम जब भी मिलते हैं, हम एक दूसरे के शोज देखने जाते हैं, और शोज के बाद भी हम सब एक दूसरे से मिलते हैं। और घर पे दादा इतने सारे शागिर्द जो हैं गुरुजी के, जो देश विदेश से जो आते हैं, वो घर पे ही आते हैं, घर पे ही रुकते हैं, जो बाहर से आते हैं। तो उनके साथ का भी जो सीखना, जो देखना, उस तरीके से मेरी ट्रेनिंग काफी रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
रुद्र। नमस्कार सभी को, और सभी बड़े हैं और मैं छोटा हूँ, आप लोग का आशीर्वाद और प्यार चाहिए। तो मेरी जो ट्रेनिंग शुरू हुई, इट कैन बी सेड कि बहुत छोटे से शुरू हुई। पिताजी के साथ उनका परफॉर्मेंस देखते थे एंड बेसिकली जब वो रियाज करते थे तो उनके साथ ही रहता था मैं, बहुत छोटे उम्र से। तो वो एक्चुअली उनका कोई स्विट्जरलैंड में एक बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस था और वो वहां गए थे, तो मैं उनके साथ गया हुआ था। सो आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है वो पल, बट आई वो सर्टिफिकेट कि मुझे मिला था वहां से कि आपको 2.5 years मैं उस एज पे था, तो वहां पर मैंने कुछ किया था पिताजी के साथ मिलकर। तो उसकी वीडियोस भी हैं, और तो वहां से उन्होंने मुझे प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि क्या करना है। और फिर करते गए, उनके साथ परफॉर्मेंसेस भी करते गए, उनके साथ छोटे छोटे जो भी अगल बगल जो भी मिलता था, कभी बोलते थे, या चाचा जी के साथ। और इन लोगों के परफॉर्मेंस देख के बड़े बड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं आगे आया अपने स्टडीज की तरफ, तो थोड़ा मैं कहूंगा कि मैं भटक गया लाइन से, बिकॉज पिताजी और चाचा जी ने इतना कुछ दिया है, उसको परस्यू करना बहुत जरूरी था। बट शायद थोड़ा कॉमर्स साइड पे मैं चला गया एंड आई वाज परस्यूइंग सीए। तो उस समय थोड़ा सा मुझे थोड़ा अलग हो गया। देन उसके बाद 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद पता चला कि ये बस की नहीं है। ये आप जो दिल से करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन आप अकाउंट सॉल्व करो और मैथमेटिक्स तो कथक में भी है, तो उसमें आके कुछ करो। तो पिताजी ने और चाचा जी दोनों लोगों ने इतना मोटिवेट किया, जब गिरा हूँ उन्होंने उठाया है, और जब बहुत उठने की कोशिश किया तो उन्होंने बताया कि बेटा यहाँ पर रहो, ये रहना बहुत जरूरी है। तो उनके साथ प्लस जितने भी कथक कलाकार हैं, मैं तो इवन आई से कि मैं सभी से मोटिवेटेड हूँ, त्रिभुवन भैया, संजीत भैया, दुर्गेश भैया एंड सौरभ गौरव भैया एंड आपसे भी एंड एवरीवन। आई एम रियली मतलब देख के इतनी खुशी होती है, वो अंग भाव त्रिभुवन भैया का, वो चक्कर मैं देखता हूँ संगीत भैया का, और वो एनर्जी जो पोजेस करते हैं दुर्गेश भैया, सौरभ गौरव भैया, एंड मैं तो सामने देखा हूँ भैया का परफॉर्मेंस, संदीप भैया का। तो मैं सभी से मोटिवेटेड रहता हूँ और कुछ करने की उसी में कोशिश करता हूँ। और मुझे लगता है कि शायद ये जो घरानाज है, ये एक ही जैसे एक फूड है, ये खाना है, उसमें अलग अलग फ्लेवर्स की जरूरत पड़ती है। हर एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हम कहते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो अनेकताओं में भी हमारे अंदर एकता है, हम अलग अलग फ्लेवर्स है लेकिन फिर भी एक साथ है। तो दिस इज व्हाट कि हम एक कल्चर दिखाते हैं, हम एक भाईचारा जो हमारे बीच में है, रिस्पेक्ट, वो सारी चीजें दिखाते हैं। तो ये तालीम हुई, और ये कहीं ना कहीं सोच है कि हम सभी को परस्यू करें, क्योंकि सभी के पास कुछ ना कुछ है। और मैं तो कहता हूँ कि मेरे पास नहीं है, सबके पास ज्यादा है। तो टू टेक पॉजिटिविटी फ्रॉम देम, और वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है हम सभी को। मुझे तो बहुत हेल्प करता है। तो Definitely. दिस इज व्हाट माय जर्नी फ्रॉम द स्टार्टिंग। Yeah, yes, actually, I also believe in that. Definitely, everyone has their own identity at the same time. Like in a bigger aspect, we all are under the same umbrella, like a kind of like मैं ये बोलता हूँ कि अगर जैसे कि एकदम इनिशियल मतलब अगर हम ऐसे सोचे कि तुम इस गली में रहते हो, तुम दूसरे गली में रहते हो, तो वहाँ भी फर्क हो जाता है। फिर वो एरिया की बात आ जाता है कि अगर कोई चित्तरंजन पार्क या कोई मतलब दूसरी जगह दिल्ली में या कलकत्ता में, तो वो अलग अलग एक ही जगह पे अलग अलग होता है। और फिर उससे बड़ा हो जाता है जब आप उस जगह से बाहर जाते हैं, तो वो पूरा एरिया उस जगह का आइडेंटिटी बन जाता है। और फिर आगे जाके ना, तुम जब स्टेट के बाहर जाते हो तो तुम वो स्टेट से बिलोंग करते हो, और कंट्री से जब बाहर चले जाते हो तो कंट्री से बिलोंग करते हो। कि मैं जैसे कि बंगाल या गुजरात या दिल्ली या यूपी से सब है अलग अलग, पर हम सब इंडियन हैं। और उसके बाद अगर इंडिया के बाहर जाए ना, एशिया के बाहर चले जाए, तो हम एशियन हैं। एंड ऑफ द डे वी आर ग्लोबल सिटीजन। मतलब अभी जो मतलब हम सब मतलब विश्व जो है उनके सब मतलब नागरिक है। पर ये जो अपना जो एड्रेस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, या आपका जो पासपोर्ट है वो कहाँ के है। आप तो इंडियन पासपोर्ट लेके आप कहीं भी घूम सकते हैं, और वो जो आपका आइडेंटिटी है वो भी मेरे ख्याल से एक तरह से जरूरत है। और एट द सेम टाइम
मतलब आपको जो एक्सेप्टेंस जो है वो अगर बढ़ाएंगे तो आपका जो दिशा है वो और खिल सकता है। ये मेरा मतलब सोच है, और ये अपने हिसाब से मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं सब गुरु लोगों से जितना भी सुनने का सीखने का मौका मिला, चाहे वो जिस घराने से भी है, तो उन सब के बातों सुनते हुए मुझे ऐसा कुछ मतलब फीलिंग होता है। मुझे पता नहीं कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मेरा सोच है। तो अपना जो आइडेंटिटी है वो तो रहना ही चाहिए, क्योंकि तब जाके उसका जो रुद्र ने जो बताया, या सब ने जो उसका जो फ्लेवर है। और आप सब जैसे आपका जन्म ऐसे फैमिली या ऐसे घराना से हुआ है, तो इसीलिए तो आपको तो करना ही है। और आपको देख के ये मतलब, पर मैं ये कहना चाहेंगे सबके लिए कि जैसे कि सभी के बातों से ये जो सामने आए ना, कि आपस में जो एक गुड रिलेशनशिप है, हाँ, एक जो रिस्पेक्ट है, एक जो प्यार है, ये बरकरार रखना चाहिए, ताकि कथक के लिए वो अच्छा रहे। हाँ, तो मैं मेरा जो दूसरा टॉप मतलब सेशन जो है उसमें मैं जाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आप सब तो एकदम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए बाहर के लोगों को मुझे पता है कि कभी कभी उनको ऐसे लगता है कि आप लोग बहुत प्रिविलेज है, क्योंकि आपको सब, जैसे कि रुद्र को 2.5 साल में स्टेज मिल गया स्विट्जरलैंड में। पर ये एक तरफ से बिल्कुल सही है, पर मेरे ख्याल से दूसरी तरह से ये भी बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाता है, क्योंकि उनका जो मतलब घराने की या फैमिली के जो नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो मैं सिर्फ घराना नहीं कहूँगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन का जो फर्स्ट जनरेशन जो है उनका स्ट्रगल एक तरह होता है, क्योंकि उनको एंट्री लेना ही बहुत मुश्किल होता है। पर नेक्स्ट जनरेशन जब फील्ड में आते हैं ना, तो उनको आसानी से तो वो एंट्री कर जाते हैं। पर वो कितना मुश्किल होता है, और आप लोगों को कैसे लगता है कि जब आप से वो डिमांड हो जाता है और वो जो प्रेशर बन जाता है ना, वो आप लोग कैसे उसको मतलब बैलेंस किए? क्योंकि एक स्टेज मिलने का जो आनंद है वो तो बचपन में उसको पता नहीं चलता, उससे बस आनंद में नाच लेते हैं। पर बाद में जब होश आ जाता है ना, तो उसको आप लोग कैसे उसको संभाला और क्या सोचता है? रुद्र, ठीक है, रुद्र छोटे हैं, रुद्र हाथ उठाया। आपने जैसे बोला ना कि वो आनंद अलग है, तो मुझे तो याद भी नहीं ओ एक्चुअली देखो, वो था यार, क्या। हाँ, बस वो बताते हैं कि ये किया, ये देखो वीडियो है तुम्हारा, तुम मेरे अगल बगल घूम रहे हो, कर रहे हो, तो वैसा ही है। हाँ, आपने परफेक्टली कहा है वो चीज। हाँ, वही कि अनजाने में आ गए स्टेज पे, पर बाद में जाके जब उनको पता चला कि मैं इस घराने से हूँ या तो इनका बेटा हूँ, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, मेरे ख्याल से वो भी मतलब कुछ स्ट्रगल से ज्यादा नहीं है, वो भी बहुत स्ट्रगल की बात है कि आप उसको कैसे बैलेंस करें। तो कौन बोलना चाहेंगे इसके बारे में? सौरभ, गौरव, त्रिभुवन? ठीक है, त्रिभुवन बताओ तुम्हारा अच्छा फीलिंग। हाँ ठीक। या जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और मुझे ज्यादा कुछ नहीं है वैसे इस पे कहने को, पर मैं 2-4 ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं बहुत आराम से लाइमलाइट में लाना चाहता हूँ, और बहुत मन से लाइमलाइट में लाना चाहता हूँ कि अगर ऐसा किसी को लगता है, ऐसा किसी को लगता है, ऐसे मेरा मतलब है ऐसा मोस्टली सबको लगता है कि हम लोग जो हैं, हम जितने भी इस समय हमारे स्क्रीन पर हैं सब लोग मौजूद, हम लोग को हर चीज बहुत आसानी से मिल जाती है। पर आप एक कोट है जिसको हम बोलते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जहां पहुंचे हैं वहां बिना किसी रियाज के पहुंच गए, या हमने अपना खून पसीना नहीं बहाया, या हमने कोई ऐसा हमें तकनीक बता दी गई घर के अंदर अंदर कि आप जो हो 10 साल का जो गुण है वो आप 1 साल में आप कवर कर लोगे, होता नहीं ऐसा कथक में ना कोई क्रैश कोर्स नहीं होता। नहीं, हाँ, ऐसे ठीक है बिल्कुल। जी, कथक में कोई क्रैश कोर्स नहीं होता। तो जो एक इंसान जो किसी ऐसे फैमिली को बिलोंग नहीं करता, बस उसके अंदर एक प्रेरणा है, एक चेष्टा है कि मैं कथक की सेवा करूं, अगर उस इंसान के मन में कभी भी एक ऐसा सवाल आता है कि ये जितने भी लोग हैं, तो सबसे पहले जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि इट इज नॉट आवर चॉइस, ये बिल्कुल हमारी चॉइस नहीं है कि हम इस घर में पैदा हुए हैं, बिल्कुल नंबर बिल्कुल। 1।
बिल्कुल। ठीक है, तो एक पर्सनल अटैक्स अक्सर हम पर ऐसे हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। यू गेट टू नो, कोई कोई आपको पर्सनली अटैक करता है, चाहे वो इनडायरेक्टली कर रहा हो, बट कर देते हैं बिना ये सोचे हुए कि शायद इस पर्सन ने भी दिन के 8 घंटे 6 घंटे घुंघरू बांध के तालमाला लगा के नादन दिन्ना नादन दिन्ना नादन दिन्ना पे बैठ के उन्होंने वो रियाज किया है। वो बिल्कुल। किया है, इसीलिए वो हैं जो आज वो दिख रहे हैं मंच पे। चाहे वो कम दिख रहे हैं, ज्यादा दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं वो तो ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि मेहनत हमारी भी उतनी ही लगती है, खून पसीना हमारा भी उतना ही लगता है। बिल्कुल। हम कोई अलग इस घराने में पैदा होने की वजह से हमारे अंदर कोई अलग से शक्ति या ऊर्जा नहीं आती कि हम कथक की गहराइयों को या उस एक जो डांस की गरिमा है उसको हम लोग मतलब एकदम इम्बाइब करके बैठे हुए हैं और एब्जॉर्ब करके बैठे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीज वही है कि धीरे धीरे आपका जो ग्रेजुअली आप जब बड़े होते हैं, आपके घर पे आपको कैसे संस्कार दिए गए हैं उस हिसाब से आपके अंदर धीरे धीरे वो सारी चीजें आ जाती हैं। पर रास्ता तो उतना ही कठोर है, उतना ही पथरीला है, उतने ही बार आप गिरोगे, उतने ही बार आपको उठाया जाएगा, वो सबके लिए सेम है। ठीक है। अब जहां तक मंच की बात है, तो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि आई थिंक मेरे से ज्यादा या हम 1 2 3 4 5 हम जितने भी हैं, हमसे ज्यादा जो इन घरानों से बिलोंग नहीं करते वो ज्यादा नाच रहे हैं। अगर आप स्टेज की बात करेंगे तो बिल्कुल, ठीक है, हमसे ज्यादा नाच रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आए दिन अगर मैं फेसबुक पे जाता हूँ, जो कि इस समय कथक वालों के लिए एकदम पीआर का सोशल मीडिया का पीआर बन चुका है वो। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं यही कहूंगा कि हम तो भाई कहीं एक तो प्रोग्राम कहीं एक ऐसे दिख जाता है, पर हमसे ज्यादा नाचने वाले वो हैं जो इस फैमिली को ऐसे बिलोंग नहीं करते। बिल्कुल। तो मेरा बस यही कहना है कि जहां तक अवसर की बात है, तो अवसर की बात जो आज के जमाने में टैलेंट से ज्यादा, ठीक है, आई मीन नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट टैलेंट से ज्यादा इस समय ये है कि आप किसको कितना जानते हैं, आपकी कहाँ तक पहुंच है, सिफारिश है। ये कड़वा सत्य है। आई एम सॉरी इफ आई एम स्पीकिंग, नो यू आर राइट, यू आर कंप्लीटली राइट, अच्छी बात ना लगे, ठीक है, पर ये कड़वा सत्य है कि इस समय सिफारिश पे ज्यादा चलता है हमारा कथक जगत, और जिसकी जहां तक पहुंच है उसके वहां तक उतने प्रोग्राम्स हैं। हम जैसे लोग जो घर पे हैं, भाई जो हमें जानते हैं उनकी तरफ से हमें जो ऑफर होता है वो ऑफर हो जाता है। मैं पूरा मानता हूँ, ये बात बिल्कुल सही। और खास करके मुझे ये भी लगता है जैसे कि बाहर के जो लोग हैं ना, उनका ये फैसिलिटी होता है, वो किसी को भी मतलब अपील कर सकते हैं, पर आप लोग वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो प्रेस्टीज है फैमिली का या जो है ना, उससे आप बोल नहीं सकते कि, पर बाहर के एक लोग है ना, वो आसानी से बोल सकता है, क्योंकि वो अगर हाँ बोले या ना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपका जो गरिमा है ना, ये बिल्कुल मैं पूरा समझ सकता हूँ। हाँ दुर्गेश जी दुर्गेश भाई। हाँ दुर्गेश, मैं बहुत ही सहमत हूँ त्रिभुवन भैया से। लाइक आई रियली अग्री विद हिम, आई सेकंड दैट। एंड व्हेन इट कम्स टू बीइंग प्रिविलेज की बात आती है, लकी होने की बात आती है, यस बात सही है, हम प्रिविलेज्ड है, हमको मौका बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत छोटी उम्र में स्टेज मिल जाता है। तो लेकिन लोगों को ये भी समझना है कि हमको जो मौका जल्दी मिलता है, तो हमको बुराइयों का सामना भी जल्दी पड़ता है, हमारा क्रिटिसिज्म भी सबसे ज्यादा होता है, और अगर हम नहीं चले, अगर हम वी आर नॉट अप टू द मार्क, तो हमको बाहर भी जल्दी निकाला जाता है। बिल्कुल, अब ये सुनिए, अब दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि माई कंपैरिजन इज डायरेक्टली डन टू माई फादर। यस वही मैं पूछ रहा था। नॉन घरानेदार का या शागिर्द का कंपैरिजन गुरु से कभी नहीं होता। नहीं होगा, बिल्कुल। सो देयर इज वन कांस्टेंट प्रेशर कि एक आपका कंपैरिजन होना। मैं 18 साल का था, 17 साल का था, आई वाज परफॉर्मिंग इन पुणे एंड इट वाज नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, लाइक ओके था। एंड वन ऑफ द critics और वन ऑफ द आर्टिस्ट वाज लाइक, यार आप तो इनके बेटे हो। दैट वाज लाइक, यू आर हिज सन, you should be like him. But see my age, I was 16, 17. How am I supposed to be like my father? No, it's not possible. Who has an experience of 50 plus years. Yes,
जी जी, दुर्गेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। आई थिंक करंटली पीपल एक्सपेक्ट ऑल ऑफ अस टू बी प्रोडिजीज, इफ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, वो सोचते हैं कि हम लोग जो है वो प्रोडिजी हैं। प्रोडिजी मतलब 3 साल की उम्र में हम 42 साल का नाच नाच रहे हैं। ठीक है, तो वो तो आई थिंक इट इज वेरी इनह्यूमन टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबॉडी। Yes. And especially in the field of performing arts, Yes. जहाँ पे Exactly. एक मुकाम लाने के लिए 20 साल को आपको रियाज करने की जरूरत है। बिल्कुल, We get बिल्कुल। early opportunities because we start early. Yeah. 4 साल की उम्र में अगर तालीम शुरू हुई तो एटलीस्ट 22 साल की उम्र में तो प्रोग्राम्स मिलना शुरू हो गए, नाम मिलना शुरू होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। People start at 20 and that is why they get at 40-45. वही मैं बोल रहा था कि अब ये सोसाइटी का भी थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि हाउ यू आर लुकिंग एट परफॉर्मर, लाइक वेदर ही और शी इज बिलोंगिंग फ्रॉम अ फैमिली, एंड डोंट लाइक आई थिंक इट इज नॉट गुड टू कंपेयर विथ हिम और हर विथ हिज और हर गुरु और फादर और मदर। तो उससे क्या होता है, जो परफॉर्मर होता है ना उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। उनका जो मतलब उनका जो कला है वो सही तरह से निखर के नहीं आते हैं। तो आई थिंक एज दुर्गेश वाज सेइंग, like his father always says like don't try to copy. Durgesh, what you were like answering? Yeah. What I was been taught by my father, by my bade papa, Pandit Harishandan, all he has always said that don't try to copy me. ठीक है, गुरु को कॉपी कैट मत बनो, उसका छाया बनो, उसकी परछाई बनो। बिल्कुल। उसको आप कॉपी करोगे तो आप उसमें आपकी बाबत नहीं आएगी। उनका 40-50 साल का रियाज है, आपको अभी 15-20 साल ही हुआ आपको रियाज करते हुए, वो बाबत नहीं आएगी। अपना उनकी परछाई बन के उनके साथ चलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Right. Do what he says, don't do what he does. Yes, yes. संजीत, तुम्हारे क्या विचार है? दादा, मैं दुर्गेश भाई, त्रिभुवन भैया और ये आपकी बात, सभी की बात से सहमत हूँ कि हम लोगों ने आज हम स्टेज पे जब चढ़ते हैं दादा, तो हमारे पीछे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चढ़ती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने अपने रियाज में देखा है दादा, हमने अपने गुरुओं की मेहनत में, अपने गुरुओं के साधना में देखा है, और उस साधना को हमने खुद ग्रहण करने आज भी कर रहे हैं और जीवन भर करते रहेंगे। बिल्कुल, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम जो क्रिटिसाइज्ड हो जाते हैं दादा, वो मे बी शायद आई विल नॉट से अबाउट दैट, बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि दादा, मेरे पिताजी, मेरे गुरु, उन्होंने हमेशा, अगर मेरे से पहले उनका कोई स्टूडेंट खड़ा है तो उन्होंने कभी ये नहीं देखा, ये फर्क नहीं किया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा स्टूडेंट है। उन्होंने यही रखा है कि ये मेरे दोनों शागिर्द हैं, और अगर ये पहले आया है जो बाहर से सीखना है तो पहली प्रेफरेंस इसको है, फिर सेकंड नंबर इनका है। जैसे कि इसका एक छोटा सा, एक बहुत ही, जब मैं पैदा हुआ था तब मम्मी ने कहा था कि बेटा हो गया। वो घर पे जब सब मिले तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये तो 101 नंबर पे है। इससे पहले मेरे जो मेरे शागिर्द है वो मेरी औलाद है। तो हमारे गुरुओं ने, मेरे पिताजी ने, मेरे गुरुजी ने हमेशा अपने स्टूडेंटों को अपने औलाद, अपने बच्चों की तरह प्यार किया है। तो मैं उन्हीं सब बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि हम सब एक परिवार ही हैं। इट्स नॉट ओनली दैट हम भाई हैं या हम हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि वो भी हम ही हैं। कथक परिवार है ये। इट्स नॉट ओनली द फैमिली गंगानीज और महाराज जी एंड एवरी, जो भी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब एक परिवार हैं। तो जैसे हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आगे हमारे पिताजी लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, ऐसे हम भी उनको आगे करेंगे, तो ऐसे ही वो भी हमें एक्सेप्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, त्रिभुवन कुछ बोलना चाहते हैं? जी, मैं अभी संजीत भाई ने शागिर्दों के बारे में जो बात कही है, वो बात मैं भी अपने पिताजी से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि हमारे घर में जो भी सीखने आते हैं, चाहे वो कथक केंद्र में सीख रहे हों, चाहे वो पर्सनली सीख रहे हों, हमेशा मैंने यही उनसे सुना है, उनके मुंह से सुना है कि अब आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं। वही तो परिवार का, अब आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं। और दूसरी बात, मैं इसमें एक चीज वो वहाँ पिछले टॉपिक से भी थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि शागिर्दों से ही मुझे वो एकदम से ध्यान आया कि जहां तक वो जो प्रिविलेज वाली बात है कि जी इट इज अ प्रिविलेज ऑफ बीइंग रिलेटेड टू दिस फैमिली, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी जो हैं, आई थिंक 1985 से दादा के अंडर, मेरे दादा के अंडर जो है वो
कथक केंद्र में एज अ रेपेटरी उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद जब दादा रिटायर हुए हैं वहां से, तो उसके बाद पापा ने उस पोस्ट को संभाला वहां से लेके आज तक वो उसी पोस्ट को संभाल रहे हैं कथक केंद्र में। तो जहां तक प्रिविलेज की बात है, तो मैं उन सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा जो लोग के मन में थोड़ा सा भी एक सवाल आता है कि भाई इनको एक एज मिला हुआ है, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी सुबह 9 बजे घर छोड़ देते हैं, आज से नहीं, सुबह 9 बजे घर छोड़ देते हैं, उनको 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता है। 10 बजे से लेके अभी तो थोड़े बहुत फिर भी वर्किंग आवर्स कम हुए थे, पर फिर भी जो शुरुआत से चलता हुआ आया है मेरा पूरा बचपना से लेके अभी तक, दिन के 7 घंटे 8 घंटे वो केंद्र में बिताते हैं, केंद्र में उन्हीं शागिर्दों के साथ बिताते हैं। वो एक कथक केंद्र एक ऐसा संस्था है जहाँ पे किसी को कोई मनाही नहीं है, आप अपना एंट्रेंस दीजिए और आप सीखिए जिनसे भी आपको सीखना है। तो मेरा ये कहना है कि एक इंसान, एक गुरु जब सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे 6 बजे तक कथक केंद्र जैसी जगह पे वो देता है। मैं तो जैसे संजीत भाई हैं, उन्होंने कथक केंद्र ज्वाइन किया, उन्होंने प्रॉपर एक कथक केंद्र में ट्रेनिंग ली, बट मैंने कभी कथक केंद्र में जाके कभी ट्रेनिंग नहीं ली। तो एक इंसान 6-7 बजे घर वापस लौटने के बाद, पूरे दिन बच्चों को सिखाने के बाद, किस स्थिति में, किस फिजिकल स्थिति में आता है वापस, मैं वही कहना चाहूंगा कि उसके बाद जो एक तालीम की बात है, अरे पापा, मतलब हिम्मत भी नहीं होती है पापा कुछ सिखा दीजिए, क्योंकि वो पूरे दिन बेचारे उसी में खट कर आए हैं, ठीक है। तो प्रिविलेज मेरा नहीं है, प्रिविलेज उन शागिर्दों का है जो 7 घंटा मिल रहा है, 7 घंटा उनसे, जो 7 घंटा उनको मेरे गुरु के साथ मिल रहा है। मेरे को तो एक थका हुआ गुरु मिल रहा है। और भैया दूसरी चीज ये रहती है ना कि वी आर ऑलवेज इन अ डिलेमा कि भाई पापा है गुरु है, पापा है गुरु है, तो देयर इज अ थिन लाइन। मैं उसी में आ रहा था। यस यस, भैया कौन सी यहाँ पे रहे, गुरु लाइक गुरु जी से बात कर रहे हैं, पापा से बात कर रहे हैं, that was a very difficult thing to figure out while growing up. जी जी जी। संजीत कुछ बोलना मेरा दादा, हाँ मैं त्रिभुवन भाई की बात से ही कह रहा था भैया कि मैंने कथक केंद्र इसी रीजन से ज्वाइन किया दादा, कि गुरुजी घर से ज्यादा वहां समय मिले। और दादा क्योंकि गुरुजी तो आपको पता है परफॉर्मर हैं और वो लगातार बिजी रहते हैं, तो कथक केंद्र ही एक ऐसी जगह है जहां मैं उनसे सीख सकता हूं, क्योंकि फिर वो रात को लेट आते हैं और कभी रात को ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो मैं भी एक बेटा या शागिर्द कि वो रात को 10 बजे आ रहे हैं बाहर से, तो मैं उनको बोलूंगा आप मुझे तालीम दी। ये तो होगा नहीं। ये कहानी मेरे पापा की थी। मेरे दादाजी रात को लेट आते थे, 12-1 बजे 12:30 बजे आते थे प्रोग्राम से कहीं से। तो मेरी दादी को पूछते थे बच्चों ने रियाज किया क्या आज, तो दादी कभी कभी मना कर देती, नहीं आज बच्चे खेले। तो आधी रात को दादाजी मारते थे मेरे पापा को और बड़े पापा को, फिर घुंघरू बंधवाते थे रात को सुबह 3 बजे और फिर रियाज करवाते थे। वाह, परफेक्ट। खाना नहीं मिला इसके चक्कर में। खाना सोचिए, मतलब नींद में तो उठाया बच्चों को, नींद में तो उठाया मार के और फिर घुंघरू बांध के रियाज करवाया है। क्या बात, क्या बात। वो भी अच्छा। हमको तो वैसा नहीं किया। अच्छा, सौरभ गौरव का क्या, रुद्र कुछ बोलना चाहते हो? हाँ बोलो। हाँ मतलब जैसे मेरे जब पापा जी और चाचा जी लोग जब विदेश जाते थे तो वो वहां पर रहते थे, वहां पर परफॉर्मेंस कर रहे, कितनी तकलीफें, लेकिन रोज फोन होता था कि रुद्र ने, उदय ने रियाज किया या नहीं, थोड़ा धीरे किया नहीं। तो उनका कंट्रीब्यूशन है, और मुझे लगता है शायद गुरु एक समुद्र जैसे हैं, उनके अंदर लहरें बहते जा रही हैं, आप आए हो, आपको श्रद्धा से लेनी है। अगर आप श्रद्धा से लोगे तो आपको वो दुगना क्या, वो तिगुना क्या, वो बढ़ते जाएगा। और फिर आपको किसी घरानेदार या फिर ये नेपोटिज्म का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद आगे बढ़ोगे। एक पात्र का हम लोगों के साथ प्रिविलेज भी है और रिस्पांसिबिलिटीज भी। छोड़ो गौरव। यस यस। जैसा कि रुद्र भाई ने बताया कि गुरुजी हालचाल लेते रहते थे कि प्रैक्टिस हुआ कि नहीं हुआ, वो सही बात है। और हम लोग के घर में ऐसा शुरू से, मतलब हर घर की अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग सोच है, तो मैं सब कुछ से एग्री होता हूँ। लेकिन जो हमारे घर में जो परंपरा चलती आती थी, गुरुजी तो बहुत शो करते थे, हर समय इधर उधर, तो मतलब टाइमिंग, मतलब आ जाना और कल निकल जाना, फिर अब्रॉड जाना है उनको 2 महीने 3 महीने, तो ऐसे चलता था उनका। हम लोग का क्या होता था? उसमें गुरुजी के साथ साथ माँ बाप का योगदान भी बहुत था हम लोगों की लाइफ में। क्योंकि मेरी माँ ये कहती थी, बेटा जाओ घुंघरू बांधो,
और पिताजी मेरे खुद सितार प्लेयर थे, पंडित लेट अमरनाथ मिश्रा जी। वो खुद सितार लेके लहरा देते थे, हम सितार बजाते, वो सितार बजाते थे, हम डांस करते थे। तो गुरु तो एक बार फोन करके पूछते थे बेटा ये, और जब कुछ बंदिश भूल जाता था तो मैं उनको फोन करता था, गुरु जी ऐसे ऐसे है कि बेटा देखो ऐसे ऐसे चीज है, इसको करो बढ़िया। और मेरी माताजी बोले, जब माताजी खुद बैठ के ताल देती थी, क्योंकि वो ऐसे घर की डॉटर बेटी थी, श्री चंद मिश्रा जी, जो कि गिरजा देवी जी के गुरु जी थे, हमारे नाना जी, और महाराज जी के ससुर जी थे। तो मेरी मम्मी हमारे साथ साथ बैठ के ताल देती थी, तो मैं भूल जाता था तो मैं अपनी मम्मी से भी पूछता था कि गुरुजी ने कैसे बताया है, तो मम्मी ने बताती थी कि ऐसे से ये बंदिश है बेटा, इसको ऐसे करो। और मेरी मम्मी अभी इतनी कड़क है कि अभी भी सुबह बोलती है पहले घुंघरू करो फिर नाश्ता मिलेगा। रियाज, मेरे घर में अभी भी ये रूल है कि मैं अगर 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस ना करूं तो मेरे को ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तो मैं इसी बातों में मैं आ रहा हूँ कि ये सच है, क्योंकि ये जो रियाज तुमने सब लोग जो किए हैं, जो त्रिभुवन ने शुरू किए थे, बिकॉज ऑफ दैट वेयर यू आर टुडे, because of all this discipline and practice and talim, then only you can come to such a level so that you can be accepted by the dance world, and or like you will be invited. So it is same for anyone, like whether you are belonging from a family or not, without practice, without riyaz, you can't. ना सही बात है। हाँ दुर्गेश, जो रियाज की तालीम की बात है ना, तो वही समय पापा के पास नहीं होता था। तो क्या किया फिर पापा ने मुझे, हमारी यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्सेज होते बच्चों के लिए, तो मुझे सुबह स्कूल होती थी, शाम को डिप्लोमा कोर्स में डाल दिया। तो डिप्लोमा कोर्स में मुझे 1 घंटे पहले जाना पड़ता था, तो 1 घंटा 5 से 6 मैं खुद से वो तत्कार करता था, फिर 6 से 8 डिप्लोमा क्लास में वहाँ पे सीख तालीम लेता था। तो मैं कोई भी ईयर में था, पर मैं नाचता था पापा की क्लास में था। फर्स्ट ईयर में भी था तो जाके नाचता था पापा की क्लास में, क्योंकि तालीम उन्हीं से लेनी है। बट दैट वाज आल्सो नॉट इनफ। देन व्हाट माय पापा डिड वाज कि उन्होंने अपने साथ मुझे डुएट नचाना शुरू कर दिया। आई वाज 11-12, तो ही स्टार्टेड टू टेस्ट माय कैरेक्टर दैट वे, कि स्टेज पे ले गए, छोड़ दिया, करो। आई थिंक दैट्स द प्रिविलेज ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर। That is the privilege. तो उन्होंने वो एक that was a major learning point in my life, कि वहां से सीखने को मिला कि how to take care of the stage. आप स्टेज कैसे संभालते हो, how do you handle it? That comes very later on in life, but I got that very early in my life, और वहां से बहुत ज्यादा सीखने को मिला। So that was the biggest privilege of my life. क्योंकि तालीम तो सभी शागिर्दों को सबको एक जैसी मिली, और शागिर्दों को उल्टा ज्यादा तालीम मिली। हाँ, क्योंकि वहाँ रेगुलर my biggest privilege, yes, my father never sent me on a solo. उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड कभी किसी सोलो के लिए नहीं किया, वो भी शागिर्द जाते थे, मुझे उनके साथ नाचने मिलता था बचपन में, उनके साथ। तो वहाँ पे वो तालीम सबसे बड़ी तालीम हो गई। नहीं, वही तो मतलब जो, हाँ त्रिभुवन, यस जी, मुझे जो अभी बातों से जो एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है, मैं वही देख रहा हूँ। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि शायद सिर्फ ये मेरी कहानी नहीं है, सबका है। जैसे संदीप भाई ने कहा कि भाई हम जो हैं, हमने कथक केंद्र ज्वाइन किया तो हमें उससे गुरु का सानिध्य मिल गया। ठीक है, दुर्गेश भाई ने कहा कि हमें हमारे पिताजी ने डुएट्स में खींच लिया, तो उससे उनको सानिध्य मिल गया। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसे ही जो मेरा केस है, उसमें मैं ये कहूंगा कि 2013-14 के आसपास से मेरे पिताजी ने मुझे अपनी हर कोरियोग्राफी में नचाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मैं वही अब वही रियलाइज मैं कर रहा हूँ कि हम लोग हमारे गुरुओं ने, हमारा इनिशिएटिव, हमारे गुरुओं के इनिशिएटिव, हम लोग को ये जो एक्सपीरियंसेस, जो मोती पिरोए गए, जितने भी हमारे सीवी में जितने मोती पिरोए गए हैं अभी तक, वो हमारे गुरु की देन है। क्योंकि वो नहीं होते तो हम लोग को चलिए पहले कोरियोग्राफी में नाचना सीखा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा हल्का सोलो में नाचना सीखा कि हाँ जी अकेले कैसे स्टेज को पकड़ा जाए। तो वो उसमें कितना बड़ा रोल आपके गुरु निभाते हैं। भाई हमारे गुरु हमारे पिता भी हैं, दैट इज अनदर फैक्टर। ठीक है, बट मैं आज जहां तक अभी सबकी बातें सुन रहा हूं, तो मुझे वही लग रहा है कि देखिए कि किस तरीके से द गुरुज मेड श्योर कि हमारे बच्चे जो हैं वो इसमें किसी ना किसी तरीके से इनिशिएटेड रहें, इस माहौल में रहें, और उनको सही दिशा उनको मिलती रहे।
तो ये बहुत अच्छा, मुझे संजीत भाई और दुर्गेश भाई की बात सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। और मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है कि मैंने ये एस्पिरेशन शुरू किए थे ताकि हर एक दूसरे से सुने और उनसे इंस्पायर हो और बस आगे चलते जाए। और ऐसे जैसे कि अभी जो बातचीत चल रहा है और आप एक दूसरे से जैसे कनेक्ट कर रहा है, और मुझे बहुत मजा आ रहा है कि चलो एस्पिरेशन का सच में, क्योंकि सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं है, जो भी कथक डांसर है ये सबके लिए है। और चाहे वो फैमिली से बिलोंग करते हैं या ना करते हैं, चाहे वो मतलब लड़का हो या लड़की हो, जो भी है, पर वो एक जैसा ही होता है। हर एक का अलग अलग मोड़ से उनका जिंदगी चलता है और आगे बढ़ता जाता है। हाँ, तो ये मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, हाँ सौरभ गौरव कुछ बोल रहे थे। हाँ सॉरी थोड़ा गौरव भाई कहीं गए हुए हैं तो मैं ही बोलता हूँ। बोलो बोलो। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे दुर्गेश भाई ने बोला कि स्टेज की बात और ऐसे बात, तो बनारस घराने में पहले शुरू से क्या होता था कि पहले तो ऑडिटोरियम था नहीं, मतलब पहले जमाने में ऑडिटोरियम था नहीं, तो मंदिर, यहाँ बनारस में मंदिरों में डांस होता था। तो मंदिरों में ऑडियंस सामने तो बैठेगी नहीं, वो चारों तरफ बैठते थे, मतलब चारों तरफ, बीच में डांसर डांस करता था तो वो चारों तरफ डांस करता था। तो गुरुजी हम लोगों को शुरू से अपने साथ ले जाते थे। और एक होता है कि मन की धड़का खुलवाना, कि अगर भाई बड़े स्टेज पे खड़ा कर दिया तो कहीं घबराहट ना आ जाए, घबराहट ना हो जाए। तो धीरे धीरे वो जो तालीम हम लोगों की स्टेज से, मंदिरों से करते ऑडिटोरियम तक आई, तो ये उस चीज का ये हम लोग ने भी इतना लोगों को देखा परखा, लोगों का थिंकिंग सोचा कि मंदिरों की क्या सोच है, ऑडिटोरियम का, वहां से लेके ऑडिटोरियम का क्या सोच है। बिल्कुल। मैं जो ऑडिटोरियम में डांस कर रहा हूँ वो मंदिर में डांस कर रहा हूँ, तो मंदिर में जो लोग हैं वहाँ के सोचेंगे क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उनको अलग ढंग से बताना पड़ता है। तो ये चीज एक दो तरफा चीज भी है, बिल्कुल, कि हर आर्टिस्ट को अलग अलग हिसाब से, क्योंकि हर ऑडियंस एक जैसा नहीं, हर ऑडियंस रॉयल आपको नहीं मिलेगा, कमानी जैसा या कहीं जैसा मंदिरों में नहीं मिलेगा। तो उसको मंदिर के हिसाब से भी डांस नहीं, वही तो मतलब एक कलाकार तो ऐसे ही बनता है ना कि एक आर्टिस्ट लाइक थ्रू द एक्सपीरियंस, लाइक he or she need to change like the transformation. जी वो transformation that is very important, like how you are interacting with the audience and where you are performing. These all matter. मंदिर जो मंदिर का जो एक एनवायरनमेंट होता है ना, मैं आपको फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टॉकिंग, क्योंकि ऑडिटोरियम्स तो बहुत देखे, खूब देखे, पर मेरी जिंदगी के जितने भी आज तक जो भी मैंने थोड़ा बहुत नाचा है, उसके एक्सपीरियंस और जो हमें संकट मोचन में नाचने का जो एक एक्सपीरियंस हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मंदिर में नाचने के लिए आपको एक अलग ही इंसान बनना पड़ेगा। मंदिर में नाचने के लिए आपको वो आप सोच के कि हाँ जी हमने अपना भैया खोस लिया, अब हम जा रहे हैं, आ जाओ कोई, वो आपका वो तरीका आपका नहीं चलेगा, वो आपका तरीका बिल्कुल नहीं चलेगा। मंदिरों में तो ये है भैया कि लोगों को पसंद भी आया तो तालियां नहीं बजेंगी, हर हर महादेव होगा, हर हर महादेव होगा। तो बिल्कुल। हाँ, दूसरी बात भैया, मंदिरों में नाचने का, मैं 2011 से 13 2 साल लगातार, 3 साल 2.5 साल लगातार मंदिरों में नाचा हूँ। मतलब महीने में 2 प्रोग्राम मंदिरों में फिक्स है, ठीक है, क्योंकि श्रीनाथ जी के मंदिर वगैरह में, तो ठाकुर जी की सेवा के उसमें, तो वो प्रोग्राम फिक्स ही था और उससे रियाज भी बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन उससे एक चीज ये हुई कि हमको नाचना होता था भगवान के सन्मुख होके, तो जो लोग देखने वाले हैं वो सब तो पीछे खड़े हैं, ठीक है। तो वहां से फिर वो एक तालीम शुरू हुई कि नाच ऐसा नाचो कि तुम्हारी पीठ भी सुंदरता से नाच रही है, वैसा नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो एस्थेटिक सिर्फ यहाँ से नहीं आना चाहिए, एस्थेटिक पीछे से भी आना चाहिए। ये हाँ, तो वो वहां से बहुत बड़ी शुरू हुई, ऑडियंस मंदिरों में नाचने को बहुत बड़ा फायदा हुआ। और मुझे ये भी लगता है कि मंदिरों में नाचने से क्या होता है कि नाच का जो एक्चुअल जो एसेंस होना चाहिए, मतलब खुद के अंदर जाने की जो इच्छा,
जी जी मतलब जी जी खुद के लिए डांस करना, क्योंकि मैं खुद के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप भगवान के सामने डांस करते हैं ना, जी तो जी आपका वो जी जी पूरा सरेंडर हो जाता है। आपका जी 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 मतलब अंदर से वो सरेंडर होना चाहिए, नहीं तो जी आपका डांस, और वो कैसे हो नहीं हो भी जाता। जाता है, और हो भी जाता और है। हम्म। बिल्कुल संदीप दा, मैं आई आपको ये थिंक बता रहा उसी हूँ कि उसी कभी का कभार, कारण है कि हाँ 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 कभी जी कभी बोलिए। ऐसा, क्योंकि मंदिरों में डांस करना, जैसे महाराज जी ने बोला, कथक कथक कहे कथक कथिक कहावे। कथा तो कैसे प्रतिकावे। तो कदा वो कहे सो मंदिरों में कथि कहावे। कथिक कथा कहे जो कथिक कहावे, सॉरी। हाँ तो वो जो कहने का जो तरीका है वो मन में आता है, और जब दरबार में भगवान के नाचते हैं हम लोग, या आप सभी जो भी डांसर परफॉर्मेंस करते हैं, तो वो एक भाव भगवान से जुड़ जाता है, वो कीर्तन के जैसा हो जाता है। हाँ सही बिल्कुल। बात है। हाँ वो संजीत कुछ अपने बोल। भाव बोल बिल्कुल के, बिल्कुल। वो मैं भाव ये बोल कह के रहा, वो, हाँ संजीत बोलो, हाँ फिर रुद्र पे आएंगे। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे दादा अभी ये मंदिरों के नाच की जो डिस्कशन चल रहा है, तो हमारा राजस्थान में, दुर्गेश भाई विल एग्री, हमारा राजस्थान में दादा एक जगह है जो हमारे कुल के देवता जिसे कहते हैं, पालास में भैरव बाबा का स्थान है वो। और दादा हर साल उनके जन्मदिन पर हम सभी लगभग जो हैं वहां उसी जगह होते हैं, और पूरी रात दादा जागरण जैसा चलता है वो। और बाबा के बिल्कुल मंदिर के आगे दादा हम वहां नाचते हैं, और वो जो नाच दादा, वो जो पावर जो सभी कलाकार और गांव के हमारे लोग, और एक वो जो फीलिंग, जो कनेक्टिविटी, जो पावर जो वहां से महसूस होती है दादा, वो मुझे लगता है कि को हमारी ऑडिटोरियम या पर्सनल किसी जगह। डेवलपमेंट को भी बहुत ऊपर लेकर आता है। बिल्कुल और एक क्षमता बहुत बढ़ जाती है मंदिरों में हाँ नाचने से, क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिट नहीं होती है। हाँ। आपको, आप बिल्कुल में जितना दम आप उतना नाचो, आप में जितना सबक है वो नाचो आप, और 2 घंटा, किसी को, 2.5 घंटा, 3 घंटा। हाँ, और किसी को दिखाने के लिए नहीं है। दिखाने के सही लिए नहीं, बात आप हाँ है। भगवान नहीं, के लिए हाँ नाच रहे हैं, हाँ भगवान के को लिए। रिझाने के लिए नाच रहे हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, अप्रोच ही अलग हो जाता है, क्षमता बहुत अप्रोच बढ़ ही बदल जाती है, जाता है। बिल्कुल अप्रोच बहुत अलग होता है, क्षमता बहुत बढ़ जाती है, शारीरिक मानसिक बिल्कुल क्षमता बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बिल्कुल। बात हाँ बिल्कुल। रुद्र, रुद्र कुछ रुद्र भाई से कुछ कह रहे थे। हाँ मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि जैसे आप जब मंदिर में हम परफॉर्मेंस, क्योंकि हम तो बहुत छोटे से कर रहे हैं, जैसे दुर्गा जी में यहाँ दुर्गा फेस्टिवल बहुत ही बड़ा होता है, तो हमारा प्रोग्राम 4 बजे होता था सुबह, तो मैं रात में जाके 12 बजे सो जाता था वहां पर, और फिर 4 बजे होता था। तो कहीं ना कहीं मंदिरों से पेशेंस, और दूसरी चीज कम्युनिकेशन स्किल, जो आज हम इंटरनेशनल लेवल पे भैया लोग इतने जगह पे जाते हैं, परफॉर्मेंसेस करते हैं, तो जो सामने की पब्लिक है मंदिरों में, वो आपके बातों से समझ सकती है, लेकिन आपके आंखों से, आपके गेस्चर से वो चीजें वो अपने आप समझ जाते हैं, चाहे वो जिस भी लैंग्वेज को समझते हो, जानते हो। तो वही चीज हमें हेल्प करता है जब हम कभी इंटरनेशनल पब्लिक के सामने, या फिर कोई बाहर का ऑडियंस है, उसको बिल्कुल समझाने में बहुत मदद होती है कि चलिए मेरा ऐसा कम्युनिकेशन स्किल है कि गेस्चर से हम चीजों को समझा दे रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। इतने छोटे से काम करते आ रहे हैं। मैं तो, मेरा तो स्टार्टिंग ही किया पिताजी ने मंदिरों से। तकरीबन दुर्गा जी जितने भी मंदिर हुए हैं बनारस में, वहां पर कहते थे बेटा तुम यहाँ से करो, तुम करो, लेकिन यहाँ से जितने आशीर्वाद मिलेंगे तुम्हें, और तुम यहाँ से ही सीखोगे। तो तभी आज जब हम किसी मंच पे या फिर कोई थिएटर में करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें याद आती हैं कि यार कम से कम ऐसा ऐसा होता है। तो इन सब चीजों से लेकर हम कुछ सीखें, समझें, और उसके बाद उस चीज को प्रेजेंट करें, तो मुझे एक वो सिनेरियो बन जाता है कि मुझे जो मतलब अभी मतलब थ्रू दिस डिस्कशन लाइक आई थिंक दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड, लाइक अननोइंगली वी आर टचिंग द सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब पहले जमाने में मतलब कैसे डांस था, कथक कैसा था, और उसी से चलते हुए कैसे ऑडिटोरियम में आ गए। तो मतलब वो भी तो एक सोसाइटी का जो चेंजेस आया एक्सेप्टेंस के हिसाब से, और डांस का जो जर्नी वो कैसे कैसे बदलते गए। तो उसी हिसाब से मतलब हम लोग अभी जैसे आजकल के जमाने में आ गए। और आप सब लोग जो बोल रहे थे कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इसी तरह से कथक का जो एक्चुअल एसेंस है उसको अगर पकड़ के रखना है हम सबको, तो उसमें जो रियाज, तालीम और जो ध्यान, वो सब होना तो जरूरी है, जो कि एकदम जी बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर से शुरू हुआ था। बट जी जी उसके आगे चलते हुए आज जैसे कि कथक जिस जगह पे आए हैं,
तो उस हिसाब से मतलब समाज के साथ, और मुझे पता है कि मैं दूसरे लोगों को से जो बातचीत कर रहा था कि क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम, तो आप जी लोग जी भी यू आर द नेक्स्ट जनरेशन एंड ऑल्सो यू आर at most of you are at that like a level of your age, like where you also had to take the responsibility of your family, and in future you also need to take care of your like own and also to your family. So what do you think about that? Yes, definitely, as a guru, we have the option, and we have the institutions like Kathak Kendra or some universities or some like other private universities or like dance companies are like now coming up. So what is your thought like regarding everyone? It's not only you, like it can be for each and everyone, like how a dance can be supported uh, with the economy, and what can be the way out for everyone. So we'll अच्छा start. जी। Everyone. तो Yes. मैं वही रिपीट करूंगा जो अभी संजीत भाई ने कहा था शुरुआत में कि देखा सीखा परीक्षा। Yes. ठीक है, अब जो देखा सीखा परीक्षा वाली बात है, तो आपने सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया, फिर आपने सीखा। तो आपकी सबसे पहली सीख वॉज टू ऑब्जर्व। आपने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, बिल्कुल, फिर आपने सीखा। अब परीक्षा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, परीक्षा बेसिकली एक वो स्टेज है जहां पर आपको आपका गुरु जो है वो अनुमति देता है कि हाँ ठीक है बेटा, तुम अपना काम आगे बढ़ाओ, तुम थोड़ा अपने सही पैरों पे बात हो है। गए हो, अपना काम आगे बढ़ाओ। बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है कि इस समय probably 90% of the people in our fraternity, ये बड़ा ही ऐसा मुद्दा है जो मैं बोल रहा हूँ, बड़े ऐसे स्टैटिस्टिक्स है जो मैं सामने रख रहा हूँ, पर बोलना जरूरी है कि 90% ऑफ द पीपल ऐसे हैं जिन्होंने शायद 1 साल तालीम ली हो, चाहे 2 हफ्ते तालीम ली हो, या एक वर्कशॉप की तालीम ली हो। सिर्फ कि हमने इनके अंदर, इन गुरु के अंदर एक वर्कशॉप किया है और तुरंत उनके सीवी में लिखा जाता है डिसाइपल ऑफ ये हाँ गुरु। हाँ, ये बात तो बिल्कुल अच्छा। ठीक है जी। तो मुझे एक तो ये बताना है कि डिसाइपल या शागिर्द का मतलब क्या होता है। बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, शागिर्द का ये मतलब होता है कि आपने अपने गुरु को अपना समर्पण दे दिया है, आप समर्पित हैं। ठीक है, समर्पित से होने का ये मतलब नहीं होता है कि आपने 7 दिन आके उनके अंदर इंटेंसिव वर्कशॉप कर ली, ठीक है, या उनके अंदर जुम्मा आप 4 दिन आए और अब चले गए, और फिर आप या तो आपने साल भर जो है सीख के आप निकल गए। क्योंकि ये कथक जो एक टॉपिक है, ये ऐसी नृत्य शैली है, कोई भी क्लासिकल डांस, मैं सिर्फ कथक की बात नहीं करूंगा, कोई भी क्लासिकल डांस जो हमारे देश को बिलोंग करता है, इतनी गहराई है, इतनी डेप्थ है कि बड़े बड़े गुरु भी जो हैं वो यही हमें सिखाते, यही कहते कि मैं तो खुद ही अभी सीख रहा हूँ बेटा, मैं तो खुद ही सीख रहा हूँ, मेरी तो जर्नी अभी भी चल रही है। तो हमारी तो कोई काउंटिंग ही नहीं, हम तो शायद अभी सिर्फ सतह को छू के जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ कि उस बूते पर कि हमने जी किसी के अंडर वर्कशॉप कर ली या वो कर ली, लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी मे बी, ठीक है, फाइनेंशियल एक बहुत चीज होती है, हर इंसान पैसे के पीछे भागता है। ठीक है, तो ये बहुत कड़वी सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके पीछे भागता है। तो कहीं ना कहीं कई लोगों का ये मोटिव होता है कि जी हम पढ़ने लिखने में तेज नहीं है, चलो नाच ही सीख लो, अपना टीचर बन जाएंगे, 40,000 की नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरा आपसे सिर्फ इस चीज के बारे में ये कहना है कि अगर वैसा भी करना है ना, तो आप उन तरह के डांस को फॉलो करिए जिनमें शायद ज्यादा गहराई की जरूरत नहीं है। आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर लीजिए। बिल्कुल। ठीक है, मैं किसी ऐसे स्पेसिफिक डांस फॉर्म का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जिनमें उतनी शायद आपके दिल, दिमाग, आत्मा की जरूरत ना हो, ठीक है, आप उनकी तरफ जाइए, उसको बढ़ाइए आगे, और आप फिर आपका जैसा भी आपका हिसाब है, आप उसको यूज करिए उस डांस फॉर्म को जैसा आप करना चाहते हैं। पर जहां तक क्लासिकल नृत्य शैली है, मैं क्लासिकल नृत्य शैली की अगर बात करूं, तो इसके लिए तो आप ये भूल जाइए कि आप जब आपके अंदर जब तक 20, 25 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस आपके अंदर नहीं है, आपके बेल्ट के अंदर नहीं है, आप किसी को भी तालीम देने लायक हैं। बिल्कुल।
ठीक है, जहां तक जो तालीम देने की बात होती है कि भाई तालीम तो तब दोगे ना जब आपकी तालीम होगी। सही बात, सही बात, सही बात। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल, आप तालीम तो तब दोगे। तो मेरी तो दरख्वास्त है, मैं इससे दरख्वास्त कर सकता हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसे लोग को प्लीज आप जाइए, अपने गुरु को बोलिए कि आपको वो सानिध्य दें, आपको वो छाया दें अपनी, और आप बहुत अच्छे से मन लगाकर उनके अंदर सीखिए, रियाज करिए। और जिस दिन वही देखा सीखा परीक्षा, जिस दिन वो आपकी परीक्षा आप दे दोगे वो वाली, और आपके गुरु बोलेंगे हाँ बेटा जाओ, अब तुम कर सकते हो, अब तुम जाओ। ठीक है, जिस दिन वो एक दिन आता है जब गुरु बोलता है कि हाँ बेटा तुम अपने काम करने लायक हो, और ठीक है, वो दिन का इंतजार करो और फिर अपना काम करो। और उससे मेरे ख्याल से क्या होता है, उसके बाद ना तुम्हारा मतलब कैसे चलता है वो तुम्हें सोचना नहीं पड़ता है। जब गुरु तुम्हें बोल देते हैं कि तुम चल सकते हो, हाँ, तो तुम चल ही सकते हो। ये विश्वास मतलब, पर वहां तक तुम्हें वो पेशेंस होना चाहिए कि मुझे गुरु बोले कि तुम चलो। क्योंकि संदीप दा वो गुरु को वो शागिर्द का वो चलन दिख जाता है, इसलिए गुरु कहते हैं कि तुम जा सकते हो आगे। हाँ वही, क्योंकि गुरु को चलन शागिर्द का नहीं दिखता, उनसे कहते बेटा बस सेवा करो, संगीत का और नहीं सेवा करो। और नहीं क्या है, मुझे जो पर्सनल मतलब जनरल लाइफ से मुझे जो पता होता है कि मैं ये हमेशा मतलब मैं सोचता हूँ और मैं सबको बोलता भी हूँ। देखो जब हम छोटे रहते हैं ना बच्चों, तो उनको हाथ पकड़ के चलते हैं, पिता माता बड़े लोग उनको हाथ छोड़ना नहीं चाहते हैं रास्ते पे, उनको हाथ पकड़ के ही चलना चाहते हैं। पर वो बच्चा ना उस टाइम छोड़ना चाहते हैं कि मैं अकेले जाऊंगा, पर जो सिंसियर माता पिता है वो हाथ पकड़ के ही चलेंगे। बाद में वही पिता माता उनको बोलेंगे अरे मेरे हाथ क्यों पकड़ के चल रहे हो, चलो अकेले चलो, रास्ता पार करो अकेले। तो मतलब उस टाइम तक तुम्हें वो पेशेंस होना जरूरी है, ताकि गुरु तुम्हें बोले कि हाँ तुम चल सकते हो, मतलब पिता माता तुम्हें बोले कि आप तुम अकेले चलो। उससे पहले अगर चलो तो ठीक है चल सकते हो, पर गिर भी पड़ सकते हो, चल भी सकते हो, गिर भी पड़ सकते हो। पर जब तुम्हें पिता माता अपने हाथ छोड़ देते हैं तो इसका मतलब तुम गिरोगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि तब तक उनको पता चल गया कि तुम चल सकते हो, पकड़ लेंगे। हाँ, तो ये तो मतलब ये जिंदगी है, जानबूझकर भी वो गिराते हैं। हाँ, ये जिंदगी है, जिंदगी से तो कभी मैं ऐसा लगता है कि हाँ एकदम परफेक्ट। जैसे कभी वो जानबूझकर भी वो दिखाते हैं वो चीजें कि अगर फ्यूचर में तुम गिरोगे तो ऐसा हो सकते हो, तो अभी समझ जाओ, अभी समझ लो इन सब चीजों को, क्योंकि आगे पहले ठोकर लगती है तो शायद वो ज्यादा बेटर होता है, बाद में अगर लगे तो ज्यादा मुश्किल कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दुर्गेश, दूसरी बात ये जो त्रिभुवन भैया ने बोला, आई सेकंड दैट, एंड द अदर थिंग दैट कि ज्ञान ना होने से ज्यादा हानिकारक है अधूरा ज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही बात है। वो अधूरा ज्ञान लेके अपना शटर गुरु की क्लास के बाजू में ही खोल लेते हैं। ठीक है, ये we're talking about the socio-economic structure. We're talking about the socio-economic structure. Yeah. So it is very important. The lack of knowledge, lack of incomplete knowledge. Incomplete knowledge, हाँ, lack of incomplete knowledge की वजह से क्या होता है ना कि वो वही मार्केट टैप करना चाहते हैं जहाँ वो ऑलरेडी टैप्ड है, जहाँ पे उनके गुरु या उनके कंटेम्पररीज ऑलरेडी टैप करके रखे हुए हैं। They don't want to go anywhere where the market is not tapped. Market is open. Socio-economic structure, we have to make sure that you tap the market which is not tapped. Yes. I'm just saying my example, that I never go and tap the market which is in Delhi because I know that most of it is already tapped. Yeah. It is there. मुझे क्यों उनके बीच में जाके झमेले में पड़ रहा है? मैं मेरा अलग मार्केट यहाँ तो मैंने बनाया है, untapped by any, which is only tapped by me, There is nobody else who has tapped this market. Yeah, it should be. Actually, it should be. So it is very important to be. It is very important to be as an artist to be strategic. An artist an artist have to be smart, intelligent, and educated. Because we are not just working with one. We are not just working with one class of people. हम पूरे समाज के साथ काम कर रहे हैं.
हम सही पूरे बात है। समाज के एक हिस्से से काम नहीं कर रहे, हम पूरे समाज के काम कर रहे हैं। हमारे पास एकदम इलीट लोग भी आते हैं और मिडिल क्लास लोग, एकदम मिडिल क्लास के सही लोग बात, भी मिडिल आते क्लास हैं। आते हैं, सही बात we है। should know that which market to tap in what way and what is the strategy to it, and Yes, that is yes. how we can maintain the socio-economic structure without बिल्कुल, harming Harming others. harming anybody. हाँ, Okay, definitely. so that is Yes. very important. Yes. And I think it is very like it is needed. It is needed. Like you can't It is needed. you can't think in a different way, because like if you really want to be success and also try to respect each and everyone, so you Yes, have to yes. find your own way. You have to find your Yes. own way, but following like वही दीक्षा शिक्षा परीक्षा, मतलब पहले तुम्हें दिखना चाहिए और सीखना चाहिए, और परीक्षा होने के बाद परखना चाहिए। तुम्हारा जो परखना रिजल्ट चाहिए। आएगा तो वो अच्छा ही होता है। हाँ, जी अब जी अभी क्या ट्रेंड चल रहा है भैया कि एक डांसर दूसरे डांसर का सर क्रिपल कर रहा है। हाँ, They are not finding जी। their own way. They are crippling heads, which is only creating the sourness bitterness से create कर रहा है एक दूसरे के मन में। no, There वो is, तो the world is such a huge place. Yeah, There is so much yeah. untapped market. Tap that. yeah. दुर्गेश भाई on my personal request, please आप इस point को ना बहुत अच्छे से elaborate करो, because people need to understand that this sourness is not necessary. It is not required. It is not required. दुनिया बहुत बड़ी है, बिल्कुल दुनिया बहुत बड़ी है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इसकी जरूरत ही नहीं है कि आप किसी और का वो क्या कहते हैं खड़े शब्दों में पत्ता काटो, पत्ता काटो सही या सर कुछ लो। ठीक है। आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर एक। और नंबर दो कि ये जो डिवाइड क्रिएट किया गया ना, ये जो डिवाइड क्रिएटेड है, हम लोग के जो घराने का हम डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। ये डिवाइड एक्चुअली सिर्फ स्टाइल है। इट इज जस्ट अ सही बात, डिफरेंस इन सही बात है। स्टाइल, नथिंग एल्स। एक अलग तरीके से उसी डांस को नाचा जा We रहा है। have to win the next week. इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी बताई भैया ने जिस तरीके से कि ये सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी है अगर आपको इकोनॉमिकली एज एन आर्टिस्ट अगर स्टेब्लिश होना है तो आप अनटैप्ड मार्केट्स पे जाइए, जहां पर वो चीजें नहीं है वहां पर फ्लरिश करिए, जहां पर जरूरत है, जहां पर सिखाना है लोगों को, rather than जहां टैप्ड मार्केट है जहां पे है। मैं वही एक मतलब इसी में मुझे आई कैन लाइक अटर लाइक लेटर लाइक सी might be used for criticism, C can be competition, C can be coexistence, क्रिएटिव जी like and the creation as well. So we have to find the words that we need to follow, like whether we will use C for criticism or competition, or we will like use C for creation or like a culture or coexistence or something like that. So then it can be very beautiful. Huh. जी Yeah, what I believe that कि competition should not exist because see आपको भरत की रस थियरी मालूम होगी, शैडो रस की थियरी, कि हर एक मिश्रण के आप लेंगे, गुड़ लेंगे, मिर्ची लेंगे, हल्दी लेंगे, नमक लेंगे, सबको मिक्स करेंगे, तब जाके एक डिश बनेगी। ठीक है, बिल्कुल। इसी तरह लखनऊ, बनारस, जयपुर, रायगढ़ सब मिलेंगे तब जाके कथक की उत्पन्न होगी। वही मैं बिल्कुल। कथक उत्पन्न होगा। और क्या, सही बात है, बिल्कुल एक- बिल्कुल, वो आनंद आएगा। मैं एग्री हूँ एक दूसरे दुर्गेश में भाई से। कंपटीशन रखेंगे, एक दूसरे में कंपटीशन रखेंगे, एक दूसरे का गला काटेंगे, सर कुछ लेंगे, तो नीचे तो कथक ही गिर रहा है। एज एन इंडिविजुअल मैं नहीं गिर रहा। संदीप भैया yes आज हम लोग मतलब कि सब जगह से शो किए, सबका आशीर्वाद लिए, लेकिन हम लोग कभी किसी से ये नहीं रखे कि आज इनके बाद हमें बहुत दहाड़ के नाचना है या इनके पहले हमको ऐसे नाचना है। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा, मतलब जो भी जितने लोग हैं ऐसे नहीं है, हाँ लेकिन सबका अपना अपना सोच है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा, हमने हमारे गुरु ने सिखाया है कि किसी का अगर पहले काबिल बनो, बिल्कुल काबिल बनने के बाद तो थोड़ा बोल सकते हो, नहीं तो बस बड़े हैं, बड़े लोग हैं, रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, और कंपटीशन मत रखना। उनका अगर पैर है तो पैर को टच करके उनसे आशीर्वाद लो, नहीं वही और भगवान से ही प्रार्थना करो कि अच्छे से दिन ना स्टेज पे लग जाए बस। नहीं, बड़े सब जितने भी बड़े गुरु से मैं भी मतलब जैसे मिले हैं तो सबको जी, ऐसे जी। ही देखे हैं वो लोग, मतलब जी। इतना मतलब सबका मतलब जी, मैं जी। मतलब वो क्या मैं बताऊं, हर किसका नाम लूं, सब ऐसे ही जी, है, जी। सब ऐसे ही है।
पर वही जो वही मतलब चीज़ है। जो हम लोग जो दूसरी बात कर रहे थे कि उससे हम दूसरी तरह से आ गए कि जो दुर्गेश बोल रहे थे कि सच में अगर इकोनॉमिकली भी हमको सोचना है तो वो एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए हाँ। कि हर एक का जो जगह है उसको अलग अलग हाँ अलग अलग मिजाज है सबका हाँ अलग अलग मिजाज है। एग्जैक्टली। और अगर दूसरी उस बात वहां दूसरी पर बात वी आर रनिंग टुवर्ड्स द सेम फेस्टिवल, सब लोग 100 के 100 डांसर्स एक में लगते हैं, ठीक है, और उसमें नाचते हैं गिन चुन के 5 जो भी हर साल वही नाचते हैं, ठीक है। सो व्हाई कांट वी स्ट्रेटेजाइज आवर आर्ट एंड go to different forums? Corporate have so much money for the art and culture. उनको it is compulsory for them to put 2% of their yearly profit in yearly turnover to the art and culture. Why can't we go and pitch? Yeah. All we have to do is work on our presentation skills. Yes, like same thing. Like from my very first interview I did with Gangani ji, and he mentioned that as well. Like for the future generation, like they should go to the corporate and they need to convince them. If you spend money for the art and culture, it will not only like spread your name, at the same time the art can be like enriched by reaching to so many people. Yeah. So yes, good. That that's what I have been doing. मैंने फेस्टिवल्स में तो वो होता है कि क्रिटिक आपको सजेस्ट करेगा या तो कोई सीनियर डांसर आपको सजेस्ट करेगा तभी आपको मौका मिलेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट, एंड यू हैव टू आपको लोगों के पास जाके हाथ जोड़ना पड़ता है कि भाई मेरा नाम सजेस्ट कर दो, मेरा नाम सजेस्ट करो, एंड आई एम हाईली अगेंस्ट दैट फॉर गेटिंग प्रोग्राम्स. So I took out my way and so did my father. I went to the corporates, railways हो गए, ONGC हो गए या जो भी बड़े corporates हो गए, I went to them, I gave a proposal and it got clear. So मेरा साल का corporate का शुरू रहता है, फेस्टिवल नहीं होगा कभी, कोई साल मेरे पास फेस्टिवल नहीं होंगे, लेकिन I will be busy with my corporate shows. Very good. Very good. That's you should have to be happy and you should continue your journey in this world of Kathak. Yeah. It is about being monetary sound. Monetarily आप sound होंगे तभी आप सेवा कर पाएंगे. बिल्कुल. खुद खराब कंडीशन में रह के you cannot do any सेवा for any art or any person. No. That is also important. Yes, Tribhuvan. जी एकदम दुर्गेश भाई मैं आपके साथ सहमत हूँ. वही बात है कि लोग क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज एन इजी वे आउट, तो वो इस तरह की चीजें शुरू करते हैं. बट दैट इज राइट. बट मैं बताऊं दुर्गेश भाई, क्या होता है ना, लोगों को सक्सेस पाने की आदत होती है, कोशिश करते हैं कि बिना मेहनत के मिल जाए. ठीक है, बिना मेहनत के मिल जाए, हम घर बैठे रहें, कोई हमारे लिए थाली सजा दे, चावल दाल लगा दे, उसके साथ अचार दे दे. ठीक है, पर क्या दिक्कत है कि सर दुर्गेश आपने भी जब इन सब चीजों में डाली, इन सब चीजों में आपने जब अपना प्रपोजल डाला, उस प्रपोजल के पीछे, उस प्रेजेंटेशन के पीछे मैं क्या पहन के जाऊंगा, मुझे किस तरीके से बोलना है, वो पेपर वर्क दैट यू हैव डन टुवर्ड्स योर प्रपोजल, वो मेहनत है. ठीक है, काम तो है पर वो मेहनत है. ठीक है, लोग उस मेहनत को स्किप करना चाहते हैं. दे वांट टू स्किप दैट हार्ड वर्क. ठीक है, दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू टैप इनटू दोस थिंग्स. Exactly. One thing I'll tell you what thing I did that. Okay, I didn't present myself as an artist. But first of all, I have to make money for myself to survive and to live the way I have lived because of my parents. That is very important. So I have consulted image consultants and I have people and I have my friends who help me with proposals. But I have to learn from them first. एक सीखने की चेष्टा तो होनी चाहिए आपके पास. ये बात आर्टिस्ट बिल्कुल. मैं दुर्गेश भाई से पेपर वर्क नहीं करूंगा. हाँ बिल्कुल मैं दुर्गेश भाई से और त्रिभुवन भैया से सहमत हूँ. बिल्कुल, आपने जो ये बोला कि प्रोग्राम का ये वो, तो जो हम लोगों को जो प्रोग्राम करने के पहले जो हमारी तैयारी खुद की रहती है, खुद की जो सोच रहती है, वो लोगों को बस ये लगता है कि हाँ भाई ये हो गया, लेकिन वो कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, वो अपन लोग को समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन मंजिल कहाँ रखनी चाहिए. घर की प्रॉब्लम्स को लेते हुए, लेकिन आर्टिस्ट ऑडियंस के सामने हम उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं वी आर परफॉर्मिंग, हम अपने हार्डवर्क को दिखा रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को नहीं वैल्यू करते हैं. उनको लगता है दिस कैन बी इजी वर्क. इसलिए दुर्गेश भाई ने पहले ही कहा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिस्ट टू बी एजुकेटेड. बिल्कुल. क्योंकि अगर आपके पास उस तरह की एजुकेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. आपको पता भी नहीं होगा कि कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है. मतलब और यहाँ मैं एक बात बोलना चाहेंगे कि जैसे कि आर्टिस्ट
और एजुकेशन, मतलब एजुकेटेड दोनों ही चाहिए। मतलब अगर आप सिर्फ एजुकेटेड है और आप आर्ट के लिए टाइम नहीं दिया, आप इसमें अच्छे से नहीं किए, आपका जो रियाज, आपका जो साधना है वो नहीं किए, तो सिर्फ वो मार्केटिंग से भी नहीं चलेगा, तो आर्ट का वो घट जाएगा। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एब्सोल्युटली प्रीलिम्स नहीं दिया तो एडवांस का फिर कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, चाहे करियर हो चाहे कथक अपने में हो। वही मतलब नहीं वो। और एक बार अगर शो भी मिल भी गया तो एक बार परफॉर्मेंस के बाद तो चाहे कॉर्पोरेट वाले हो चाहे गवर्नमेंट वाले शो, जो महोत्सव फेस्टिवल होता है, वो अपने आप समझ जाएगा कि कौन कितना है। उसके बाद तो सेकंड टाइम खुद ही रिफ्यूज हो जाते हैं। मतलब मैं जैसे कि मेरे ख्याल से रुद्रो तो कॉमर्स से है और मैं भी कॉमर्स से था, और मैं भी। हाँ, ओ तुम भी? हाँ, ओ मुझे ये लगता है, मैं जो बोलता हूँ कि ये जो आर्ट जो है ना, ये जो कला है, एक तरह से ये जो साधना की बात है वो तो गहराई की बात है। तो डेफिनेटली उसको जाने के, उसमें अंदर जाने के लिए वो असीम है, वो असीम है। उसमें आप जितना भी जाओगे उतना ही आप उसके गहरा होता जाएगा। बस। और उसमें क्या होता है कि उसमें आपका जो स्पिरिचुअल जो एनलाइटमेंट होता है वो दूसरी तरह से होता है, पर वो आपका जीवन चलने के लिए, जैसे कि पहले जमाने में को राजा महाराजा या मंदिर से आपको सपोर्ट मिलता था, तो उसके लिए वो अलग था। जो आर्टिस्ट थे वो अपना कला में वो डूब सकते थे, पर अभी जैसे कि वो तो चला गया ना। और जिनके पास फॉर एग्जांपल कोई एक फिक्स सैलरीड इनकम है, उनके लिए अलग है, क्योंकि वो अपना कला में जितना गहराई में जा सकते हैं वो जा सकते हैं। पर बाकी जो लोग इसको जस्ट फ्रीलांस के हिसाब से या तो मतलब आगे लेके चलना चाहते हैं, उनके लिए क्या है कि उनको दोनों तरह से ही उसको बैलेंस करना जरूरी है, नहीं तो वो कला के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये एक पैरेलल ट्रैक दोनों। मतलब अगर आर्ट आपका, फॉर एग्जांपल मैं अगर कॉमर्स की भाषा से मैं कहूंगा तो ये आपका कैपिटल है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये जो शिक्षा, जो गुरु, जो साधना, वो आपका कैपिटल है। उसको आप कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, उससे वो आपके ऊपर है। वो आपको सपोर्ट देंगे, तब जाके वो इक्विलिब्रियम में आएंगे। इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो दोनों ही चाहिए, नहीं तो डिमांड और सप्लाई का जो है ना। और बाद में आ जाता है सौरभ गौरव की जो बात कि आप आपका प्रोडक्ट मार्केट में लाए, वो लोगों को अगर उसका जो डिमांड था वो किए, पर उसका अगर सेटिस्फेक्शन ना आए तो वो दोबारा नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर मेरे को अगर वो चीज नहीं चाहिए, अगर सेकंड टाइम में मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, वो सामने वाला है। दुर्गेश दूसरी बात भैया, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्ट, तो हमारा डॉक्टर्स इंजीनियर्स जैसा नहीं है कि 5 साल 7 साल पढ़ाई की और हम मिल गए एंड वी प्रैक्टिस। हमारा 5 साल आर्ट सीख के हम हमारे आगे एक्सपोनेंट नहीं लग जाए, आजकल लग जाता है 3 साल भी सीख के एक्सपोनेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। बिल्कुल दुर्गेश भाई, हमको 10-15 साल मिनिमम रियाज करके प्रोग्राम्स करके तब जाके फिर एक वो काम मिलना शुरू होता है। तो आवर वर्क इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी बिकॉज वी हैव टू have the education also, we have to be street smart also, we have to also be an artist. एक आर्टिस्ट की गरिमा रख के ये सब चीजें करनी एक बहुत मुश्किल चीज है। एक आर्टिस्ट का एक अपना गरिमा है, वो एक मेंटेन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, एंड with that we have to be street smart, we have to be knowledgeable, we have to also have to be intimidating. We cannot be affable all the time, we have to be intimidating as well, so that people don't take us and our art for granted. Yeah, and also like it's like I think if we are economically stable, kind of like research. It's kind of research. Like when after masters, you can enter for a research. You can get the fellowship for your research work, and then that is a continuous process. That is a continuous process. So you have to continue research until and unless you find something, you invent something. So you are nowhere. So art is like a living, it's a living capital. If we call it like as a capital, like our practice, our talim, our riyaz is like it will go on.
it need to be go on like it's like the like what I kind think मेरे मेरे ख्याल से दोनों एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकल, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक अगर अच्छे से हैं तो आप मेंटल अच्छे हैं, अगर मेंटल अच्छे हैं तो ही आप डीप जा पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो संजीत का क्या जी हाँ बोलो खत्म जी भी सबकी बातें सुन रहा हूँ और मेरा जरा सा दादा सबसे पॉइंट तो सबसे मिलता है, क्योंकि जो भी सभी आप सबने बात कही है मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। लेकिन दादा मेरा पर्सनल अपना जो थॉट है वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि त्रिभुवन भाई ने सबसे पहले कहा ही इस बात को लेकर कि, और दुर्गेश भाई ने भी, सौरभ और सभी भाई ने कहा कि शिक्षा जो है वो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सबसे पहली दादा मुझे लगता है कि हाँ, सबसे पहली बात दादा मुझे ये लगता है कि शिक्षा जो है वो एकदम संपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी भी जगह किसी भी स्टेप किसी भी जगह पे जब आप कदम रखेंगे तो आपका काम बोलने लगेगा। बिल्कुल। और दादा जब आपका काम बोलता है ना दादा, तब हो जाता है, तब काम अपने आप हो जाता है। अपने आप हो जाता है। क्या बात है, वही तो जो बोला कि गुरु जब तुमके बोलेंगे कि तुम चलो, या मतलब अभी तो बोलेंगे ना कि हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो, ये तो पहली बात है। रास्ता दिख जाता है, इसी बात के लिए उसका चाल दिख जाता है। हाँ जी। और दूसरी बात दादा मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारा जो फॉर्म है वो सिर्फ सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कथक जो है वो सिर्फ अगर मेरे हिसाब से कि अगर सिर्फ तबला होगा या वो पखावज होगा तभी वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं किसी और डांस फॉर्म के साथ या अगर किसी और चीज के साथ भी अगर वो इन्वॉल्व होता है तब भी उसकी एक खुशबू एक अलग रहती है। तो आई थिंक हम सबकी एक ये ऐसी ड्यूटी भी, तो ये एक ऐसी ड्यूटी भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट हम सबको करते रहना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में कथक का स्केल और भी बड़े लेवल तक पहुंचे। मतलब ये सिर्फ इसको नहीं है, सभी आर्ट फॉर्म हम सभी आर्ट फॉर्म में होकर आगे आए। जैसे मैं वो कह रहा हूँ कि हम लोग जैसे कथक को अगर अभी लेके चलें या किसी भी ऐसे कल्चरल डांस फॉर्म को लेके चलें, अगर इस तरह का आर्ट मैं विदेश से कंपेयर करूं, ठीक है भाई, विदेश का अपना एक आर्ट है, उनका अपना एक, अब उस पर मैं जाऊं तो भाई देर आर बैंड्स हु आर परफॉर्मिंग वर्ल्ड वाइड, ठीक है, एंड देन देर आर पॉप स्टार्स, देर आर रॉक स्टार्स, वो उनका उस तरीके का कल्चर है जो जिस तरीके से। बट मुझे वही लगता है कि जब मैं इफ आई सी, आई एम अ बिग फैन ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक एज वेल, तो जब मैं उनके गिग्स देखता हूँ, व्हेन आई एम वाचिंग देयर गिग्स, जब मैं उनके परफॉर्मेंसेस देख रहा हूँ, आई एम सीइंग देयर आर पीपल 500,000 पीपल आर अटेंडिंग, ठीक है, वो पागल हो रहे हैं उनके लिए, ये हो रहा है वो रहा है, बीट पॉप स्टार, वो भाई बड़े से बड़े माइकल जैक्सन से लेके छोटे से छोटे जो भी कर रहे हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर आर्ट फॉर्म जैसे जो एकदम मैं कहूँ कि भाई आई कैन कंपेयर, ठीक है। बट मुझे वही कहना है कि हमारा जो डांस फॉर्म है, बिकॉज एक नॉन कमर्शियल डांस फॉर्म है, हम कभी भी अपने आप को कमर्शियलाइज नहीं करते, ठीक है। कमर्शियलाइज का मतलब भाई कमर्शियलाइज के साथ साथ क्योंकि एक शोषण आ जाता है कि आपको अपने डांस के साथ शोषण करना पड़ेगा, ठीक है। तो कमर्शियलाइजेशन का भी एक डिग्री है जहां तक हम बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद हमें खुद ही बर्दाश्त नहीं होता। तो बस लेकिन मुझे ये कहना है कि शायद हमारे देश में बहुत जरूरी है ये सोचना या ये अंडरस्टैंड करना कि दिस डांस फॉर्म इज क्रिएटिंग रेवेन्यू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। देयर आर सो, अगर आप देखो तो देयर आर एन नंबर ऑफ डांसर्स इन दिस कंट्री, क्लासिकल डांसर्स एन नंबर, जिसमें से अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड है, हम सब इस तरीके से सामने स्क्रीन पे आके बैठे हैं, ठीक है। तो मुझे वही लगता है कि अक्सर एक आध कॉल इधर उधर से आ जाते हैं वेयर पीपल आर लिटरली दे हैव टू बेग फॉर अ प्रोग्राम, ठीक है, कि हमें कुछ दे दीजिए ताकि थोड़ा बहुत पैसा घर पर आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ऐसी हालत हमारे देश की धरोहर है, ऐसी हालत कथक की क्यों, या ऐसी हालत किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म की क्यों, हमारी वो रीच क्यों नहीं है, क्या कमी है? एक कथक डांसर जो है उसके अंदर इतना करिश्मा होता है कि वो हजारों की क्या लाखों की ऑडियंस को भी वो बांध के रख सकता है, ठीक है। उसके अंदर इतनी एक कैपेबिलिटी होती है। तो कैपेबिलिटी वाइज हम
किसी से भी कम नहीं है, ठीक है, कि पर क्यों कमर्शियल आर्ट को इतना ज्यादा ध्येय दिया, इतना ज्यादा वजन दिया जाता है, या विदेश में ये रॉक स्टार पॉप स्टार का जो कल्चर है, उनको भाई आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप बोल दो उनके लिए एकदम से बीसियों लाख रुपए का उनके लिए वो आ जाएगा, the sponsors will come in and people want to budget। एक छोटा मोटा रणजी ट्रॉफी है, छोटा मोटा कोई भी क्रिकेट का आप रख दो तो उनके पास दे हैव 1000 स्पॉन्सर्स कमिंग इन, 50 लोग ऐड दे देंगे, 50 लोग होर्डिंग चिपका देंगे, ठीक है, फुटबॉल देख लो, ये देख लो। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि उस केस में, उस चीज में हम लोग के डांस फॉर्म को वो रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रही कि भाई एक एक इंसान जो कथक से जुड़ा हुआ है वो भूखा ना जाए, बिल्कुल, या उसको कमाने के लिए, या उसको अपना पेट भरने के लिए, या उसको फैमिली अपनी चलाने के लिए इस तरीके के रास्ते ना लेने पड़े। बिल्कुल 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 भाई तुरंत क्या इंसान उसमें घुसता है और तुरंत वो बोलता है कि अब किसी कैसे मैं बस क्या करके तो मैं कर दूं, कुछ कर दूं मैं इसमें। वो वाली जो एक पद्धति होती है दिमाग की। हाँ संजीव भाई, ये बिल्कुल मैं त्रिभुवन भाई की बात से एक सहमत करता हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही कुछ एक ऐसा बात छिड़ी थी, तब गुरुजी ने एक बात कही थी कि कथक में भी एक अभियान चलना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए स्वच्छ कथक। वो जो है ना दादा, उसकी जो तासीर और वो जो मुझे ऐसा लगता है कि त्रिभुवन भाई ने बहुत सही कहा कि वो इसीलिए, क्योंकि दादा हम सबकी, जितने भी हम सब बैठे हैं, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको, अगर हम किसी के साथ, किसी और भी डांस फॉर्म के साथ अगर हम उसको कर रहे हैं, तो अब हमें शायद इस स्तर पे इस तरीके से उसको देखना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि कथक जो है, आई थिंक टाइम के साथ चेंज जरूर हुआ है। ये नहीं कह रहा कि ये बॉलीवुड हो जाना चाहिए, ये नहीं है बात। बॉलीवुड दायरे में रहकर अपने दायरे में रहकर इसको, अब हम जनरेशन की भी ड्यूटी बनती है कि इसको आगे और भी वे से सोचें, जैसे कि दुर्गेश भाई ने कहा कमर्शियल के लिए, या त्रिभुवन भाई भी बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट्स हम सबकी ड्यूटीज बनती है जिस पे हमें चलना है। बिल्कुल नहीं संजीव भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे ख्याल बात क्या है ना, वो बॉलीवुड होने की हमें जरूरत नहीं है, हमें उस सवाल का जवाब देने की जरूरत है। हमें उस सवाल का जवाब देने की जरूरत है कि हमारा जो एक काम करने का तरीका है, एक धरोहर है, या हम किस तरह की चीज को आगे लेके बढ़ रहे हैं, उसको मद्देनजर लेते हुए देखा जाए, उसको लेके देखा जाए कि ये हजारों साल पुरानी एक कला है जो आगे बढ़ते हुए चल रही है। तो आई थिंक द गवर्नमेंट और इवन मतलब जितने भी जो कमर्शियल सेक्टर्स में भी, दे शुड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि आई थिंक इट इज मोर नेसेसरी टू प्रमोट दीज आर्ट्स rather than promoting art that is coming from the outside. outside, very true. हमने जो है अपने ही आर्ट को ठेंगे पे ले रखा है। सही बात है, सही बात। वेरी ट्रू। जैसे दादा अभी लॉकडाउन के दौरान जब ये दूरदर्शन पे बहुत सारे वेस्टर्न डांस के कभी या कुछ प्रोग्राम्स आए, तो लॉकडाउन के दौरान जब रामायण चली तो पूरे विश्व ने उसको पे बैठ के अपने घरों से देखा। एकदम सही बात। फैमिली के साथ दुर्गेश कुछ बोल रहे थे। Yeah, when we talk about global thing, so first of all we are the global ambassadors of Indian culture. Yes. It is not any cricketer or any Bollywood star or anybody, because what they are doing is an outside art. Cricket is not an Indian sport. Exactly. Yeah. Right. So we are global ambassadors of Indian our culture. Own culture. And yes. Yeah. And we get that treatment when we go abroad from from foreigners. That is absolutely true. Not from our own people. Yeah. Okay. When I work, my major work is with foreigners, and I get a lot of respect from them more than our Indian people. And that is because our government is not doing anything for the art. सही बात है। गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम होते हैं साल में, जो 4-5 फेस्टिवल होते हैं गवर्नमेंट के, वही होते हैं। उसके अलावा क्या होता है? How many dancers are getting the grants? कितने ग्रांट मिल रही? नहीं, पर ये तो चलता ही जाएगा और ये डिस्कशन कभी खत्म नहीं होगा। पर हमें तो सब कुछ टाइम को मतलब चलना पड़ता है, देखना है। पर मेरे ख्याल से आज जो डिस्कशन हुआ
इससे बहुत चीज आगे निकल के आए, और मेरे ख्याल से जो इसको देखेंगे उनको सबको मतलब दे विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी, because we try to discuss so many aspects of dance and especially Kathak so openly, so that people can think ahead of this, on the basis of this discussion, many people, like not only us, others who will be watching, they can think something else, on the basis of that. But only the one request that I should utter for everyone. So whatever this young or gentlemen they are saying, this is the thought that how dance can go ahead, but keeping the tradition, the root, because they all are from very traditional family. Not only that traditional family, also they have learned, they have practiced, and they know how Kathak should be. तो मतलब वो सब जानने के बाद आज जो सोच रहे हैं हम लोग, जो सोच रहे हैं, ये उन सब के आधार पर ये हो रहा है। पर हम में से इस बातों से जो आने वाली पीढ़ी है वो ऐसे ना सोच ले कि जैसे कि दुर्गेश ने बोला कॉर्पोरेट के लिए, या त्रिभुवन ने बोला कि दूसरे डांस फॉर्म, मतलब जो भी बोले हैं, संजीत ने बोला, सौरभ गौरव, सब रुद्र, सब ने बोला, पर वो सबका बेसिक जो है ना, जो बेस है वो है तो कथक। तो मेरे ख्याल से हम अगर सभी ये कोशिश में जारी रहे कि कथक को बेस करके करते हुए इसको बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तभी जाके हमारा ये जो जर्नी ये चलता ही जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। थैंक यू। धन्यवाद दादा। थैंक यू दादा।